اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث حدیث الکتاب وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وانك لأجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ان ربك هو اعلم من ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سورۃ النون کا درس کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا دوسرا نام سورۃ القلم بھی ہے۔ میرا ویسے یہ خیال تھا کہ میں اس سورت کے جو 2 رکوع ہے اس کو 2 نشستوں میں مکمل کروں گا۔ جیسے ہی میں نے اس کا گہرائی سے مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس میں 2 بڑے اہم تمہیدی مضمون ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ زیادہ وقت لگ جائے، تو اسی کی وجہ سے میں نے آج 7 آیات تک اس درس کو رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ اس درس کو مکمل کر سکوں۔ اس میں جو سب سے پہلے ہمیں تمہیدی بات پتہ لگی وہ یہ کہ ایک وہ صورتیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہو، اور ان میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ آخری صورت ہے، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ حروف مقطعات کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے آگے تفصیلاً واضح کروں۔ ویسے تو میں نے پہلے ان کا اشارتاً پہلے بھی ذکر کیا ہے، لیکن آج ان سب باتوں کو جمع کر کے مکمل طور پر حروف مقطعات کے بارے میں جو آراء قائم کی گئی، جو قیاس اس کے بارے میں ہے، وہ میں آپ کے آگے رکھوں۔ اس کے اندر ہمیں جو دوسرا تمہیدی مضمون پتہ لگے گا وہ یہ کہ قرآن کی وہ آیات جو بالکل آغاز میں نازل ہوئی اور وہ صورتیں جن میں وہ آیات شامل ہیں، ان کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ صورت یعنی کہ سورۃ النون بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اس صورت کا نام حروف مقطعات کے حوالے سے بہت اہم ہے، یعنی کہ سورۃ النون، اور دوسرا نام اس قسم کے حوالے سے ہے، یعنی کہ سورۃ القلم۔ اس کے 2 نام رکھے، اور یہ آخری سوروں میں سے ہے جن میں حروف مقطعات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حروف مقطعات کے بارے میں آج کچھ باتیں آپ کے آگے پیش کروں۔ سب سے پہلے کہ ان کو حروف مقطعات کیوں کہا جاتا ہے، میں پہلے یہاں پر یہ بات واضح کر دوں اپنے کچھ بھائیوں کو، یہ حروف مقطعات وہ قاعدے کے الفاظ ہیں جیسے کہ نون، صاد، قاف، طا، ہا، سین، طاسین، یہ اکثر ہم جو دیکھتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ جیسے الف، لام، میم، ان کو حروف مقطعات کیوں کہا جاتا ہے؟ قطع یقطع کے معنی ہے کسی شے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، کیونکہ ان حروف کو پڑھا جاتا ہے علیحدہ علیحدہ کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ جیسے کہ الف، لام، میم، اس کو علم نہیں پڑھا جائے گا، اس کو الف، لام، میم یعنی کہ علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے گا، ہر لفظ کو جدا جدا کر کے پڑھا جائے گا۔ جیسے کہ کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ اسی وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قرآن کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا، اور یہ 14 حروف ہیں جو ان میں استعمال ہوئے۔ کچھ صورتیں ہیں جن میں ایک ایک لفظ سے شروع ہوا، کچھ صورتیں ہیں جیسے کہ سورۃ النون، سورۃ الصاد، اور کچھ صورتیں ہیں جو 2 حروف مقطعات سے شروع ہوئی، کچھ صورتیں ہیں جو 3 اور کچھ صورتیں ہیں جو 4 اور کچھ صورتیں ہیں جو 5 حروف مقطعات سے شروع ہوئی۔ سب سے پہلے ایک بات جان لیں ان حروف مقطعات کے حوالے سے کہ یہ صرف اعداد و شمار ہیں، یعنی کہ جس کو بولا جاتا ہے آبزرویشن،
ان کے معنی یا مفہوم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ غور و فکر کی بات ہے کہ اگر انسان کے آگے یہ ترتیبیں موجود ہوں تو پھر انسان کے لیے نئے نئے راستے کھل جاتے ہیں، تعلیم کے لیے اور نئے نئے معاملات کے لیے۔ اگر آپ قاعدے کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو جو عربی کا قاعدہ ہے اس کے شروع کے الفاظ اور خاص کر آخر کے الفاظ کو زیادہ تر لیا گیا، اور وہ الفاظ جو دو دو ہیں جیسے عین غائن، سین شین، صاد ضاد، قا ظا، ان کے شروع کے الفاظ کو لیا گیا۔ اصل میں یہ صرف اعداد و شمار ہے، میں پھر یہاں پر دوبارہ دہرا دوں، یہ آبزرویشن ہے۔ حروف مقطعات کے متعلق ایک بات اور جان لیں کہ ان کے بارے میں کوئی خاص قول موجود نہیں ہے، بس جو بات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے موقوف ہو گئی وہی ہمیں بات معلوم ہے، یعنی کہ جو بات انہوں نے بتا دی بس ہمیں وہی معلوم ہے، اور اس حوالے سے اور کوئی قانون یا دلیل ہمارے پاس کوئی موجود نہیں۔ تو اس طرح کی بات کو جو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے موقوف ہوئی ہو اس کو اموار توقیفیہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ موقوف جس کا علم صرف حضور سے ہی ہمیں پتہ لگا وہی ہم تک معلوم ہے۔ تو ان موقوف باتوں میں یہ بات جان لیجئے کہ کن حروف مقطعات کو آیات قرار دیا گیا اور کن حروف مقطعات کو آیات نہیں قرار دیا گیا، یہ بات صرف ہمیں حضور سے معلوم ہے، یعنی کہ حروف مقطعات سے متعلق ان کی آیات سے متعلق جو بات ہمیں حضور سے ملی وہی ہمارے پاس ہے۔ جیسے کہ نون قاف صاد، اس کو آیت شمار نہیں کیا گیا، جبکہ دو حرف کو آیت شمار کیا گیا، جیسے کہ سوائے تواسین کو۔ اگر آپ اس کو آگے رکھیں گے ترتیب کو، جب میں یہ انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو یہ تمام حروف مقطعات میں آپ کے آگے جے پی جی کی شکل میں رکھ دوں گا، اور اگر آپ ان باتوں کو سمجھنا چاہیں گے تو اپنے آگے رکھ لیجیے گا، اور اس کی کیا وجہ ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اسی طرح تین تین لفظ کو آیت شمار کیا گیا، جبکہ الف لام را کو آیت شمار نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ چوتھا حرف بھی جمع کر لیا جائے الف لام میم را، اس کو بھی آیت شمار نہیں کیا گیا، جبکہ طا سین میم یہ آیت ہے۔ اسی طرح الف لام میم صاد یہ بھی آیت ہے، کاف ہا یا عین صاد یہ بھی آیت ہے، اور پھر اس میں سب سے منفرد مزاج کی صورت سورۃ الشعراء ہے، جس کے اندر 5 الفاظ آئے اور 2 آیتوں میں اس کو تقسیم کیا گیا، ہا میم ایک آیت، عین سین قاف ایک آیت، یہ علیحدہ علیحدہ ہیں، اس لحاظ سے یہ منفرد ہے۔ اور کیوں آیت قرار دیا گیا یہ بات اللہ تعالیٰ کے نبی ہی جانتے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ علم نہیں۔ جہاں تک حروف مقطعات کے مفہوم کا تعلق ہے اس میں چند باتیں متفقہ ہیں، وہ میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں۔ جس دور میں قرآن نازل ہوا اس دور میں یہ اسلوب جو تھا معروف تھا، کیونکہ قرآن نے اپنے آپ کو چیلنج کے طور پر آگے رکھا، اور پھر اگر یہ اسلوب معروف نہ ہوتا تو پھر کوئی نہ کوئی اعتراض ضرور ہوتا کہ ان حروف کے کیا معنی ہیں، لیکن کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات معروف تھی۔ لیکن جس طرح کسی نے اعتراض نہیں کیا تو دوسری طرف کسی صحابہ نے سوال بھی نہیں کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ تمام باتیں معروف تھیں، یعنی کہ یہ اس زمانے میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا یہ اسلوب معروف تھا۔ لیکن کچھ قیاس ہیں جو محققین نے کہے، وہ آپ کے آگے میں پیش کر دیتا ہوں، ان میں سے بھی میں نے 3 ہی اٹھائے ہیں، سارے نہیں آگے رکھ رہا، 3 بڑے بڑے۔ پہلا قیاس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوگا، ایک تو وہ صحابہ، دوسرا ان کا مقام یہ تھا کہ ان کو اولین مفسر کا لقب دیا گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان کے لیے کہ دین کا، اے اللہ ان کو دین کا فہم عطا فرما، حدیث مسلم 2477 میں یہ بات واضح ہے، اور پھر ان کو خطاب بھی ملا حبر الامہ، امت کا سب سے بڑا عالم۔ تو حضرت ابن عباس کا یہ قول ہے، تو انہوں نے یہ کہا حروف مقطعات سے متعلق کہ اصل میں یہ جملوں کا مخفف کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ
जैसे अलिफ लाम मीम, असल में ये एक मुकम्मल जुमला है। क्या? अनल्लाहु आलम, तो शुरू का पहला लफ्ज अनल्लाहु आलम का पहला लफ्ज अलिफ ले लिया गया, दरमियान का लफ्ज उठा लिया गया और फिर आखिरी लफ्ज उठा लिया गया। तो अलिफ लाम मीम ये एक जुमले का शॉर्ट वर्ड है। जैसे कि मैंने आपको ये बात कही, मैं दोबारा यहां दोहरा दूं, ये सिर्फ प्रयास है, इसमें कोई हतमी दलील हमारे पास मौजूद नहीं। सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें ये बात पता लगी कि इन हरूफ मुक़त्तात को आयात शुमार किया गया और कुछ को नहीं। क्यों किया गया? ये अल्लाह और उसके रसूल ने। दूसरी बात जो इसमें आराम में मुझे मिली है वो मौलाना इस्लाही साहब की है, और अगर इस बात पर अगर जुज़वी तौर पर अगर आप गौर करें तो बात सही मालूम होती है। उन्होंने ये कहा कि ये सूरतों के नाम हैं, जैसे सूरतुन नून, सूरतुस सौद, सूरतुल क़ाफ। मगर जब आप तज्जिया करेंगे तो एक एक लफ्ज की सूरतों के नाम हो सकते हैं, मगर एक ही लफ्ज से 6 सूरतों के नाम ये मुमकिन नहीं हो सकते। तो इस लिहाज से, जैसे कि इसके अलावा अलिफ लाम मीम रा, इससे 5 सूरतें तो नहीं शुरू हो सकती। मैं इंशाल्लाह जब आपको ये लोड कर रहा हूं तो आपके ऊपर ये दोबारा मैं यहाँ पर शो करा देता हूं कि हरूफ मुक़त्तात से कितनी सूरतें कितने नामों से बनी। 29 सूरतें हैं, किन किन नामों से, तो ये आपके आगे आ गए। तो इस लिहाज से ये जुज़वी बात है, यानी कि एक सूरत एक नाम से, एक हरफ से तो आ सकती है, मगर एक ही हरफ से 6 सूरतों के नाम नहीं होता। तो वैसे ये बात असूली तौर पर मैंने ये पहले भी कई दफा अर्ज की है, खासकर सूरत क़यामा में, कि सूरतों के नाम बतौर अलामत रखे। जैसे कि सूरतुल बकरा, जिसके अंदर एक मुकाम है जहां पर गाय के ज़िबा होने का वाक़या है। इसी तरह सूरतुल अल इमरान, ये उसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें अल इमरान की उसका जिक्र बयान किया गया, तारीख नहीं, जिक्र बयान किया गया। ये सूरतों के नाम इसलिए नहीं होते कि उससे रिलेटेड कोई बहुत बड़ा मज़मून होगा, यानी कि सूरतुल बकरा के अंदर गाय से मुतल्लिक पूरा मज़मून होगा, उसकी खूबियां, उसके अंदर खामियां, और उसकी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अलामती तौर पर रखेगी, निशानी के लिए। तो इसी तरह ये बात मैंने पहले भी कही कि ये जुज़वी तौर पर बात है, हतमी नहीं। तीसरी बात मौलाना हमीदुद्दीन फराही साहब, इसमें बड़ी गहराई है, इसलिए मैंने आपके आगे रखा। उन्होंने ये कहा कि बाज़ ज़माने ऐसी हैं जिनके अल्फाबेट मुख्तलिफ अशिया की शक्लों से वाबस्ता होते। मतलब जैसे अलिफ, वो लिखा जाता है गाय के सर के मान। अगर आप अलिफ को देखें तो मैं ये जेपीजी फिर अपलोड करूंगा, तो ऊपर से एक सींग की तरह है, नीचे से सीधा है। बा, बा को रखा जाता है घर के लिए, घर की 4 दीवारी, ये बा है। पहले जमाने में छत का तो कोई रिवाज ही नहीं था, ये तो बाद में आया। तो बा रखा जाता है घर की 4 दीवारी के लिए। बा से बनता भी बैत है, और बैत के मायने है घर। जीम, जीम लिखा जाता है ऊंट के सर के मान, जीम ये। इसी तरह पौ, पौ को लिखा जाता है सांप की तरह, यानी कि कोई ऐसा सांप जो फन खड़ा करकर बैठा हो, और पौ का जो नीचे वाला हिस्सा है वो उसकी कुंडली की शक्ल में आता है। इसी तरह नून, नून बड़ी अहमियत का हम, नून लिखा भी जाता है मछली के लिए। अगर आप देखें तो ये नून है और बीच में एक नुक्ता है, तो ये मछली की शक्ल इख्तियार करता है। तो नून लिखा भी मछली के लिए जाता है और ये उसकी ही मानद आता है। और सूरत शौरा में ये लफ्ज भी आया है, लफ्ज नून के इख्तिताम पर ये लफ्ज आया, ला तकुन कसाहिबिल हूत, यानी कि हजरत यूनस मछली वाले जो पेट में थे। तो सूरतुल अंबिया में उनको इशारतन कहा गया ज़न्नून, वो मछली के पेट वाला, तो नाम नहीं लिया गया, इशारतन किया गया हजरत यूनस की तरफ। तो नून वो मछली वाला, ज़न्नून वो मछली वाला। और फिर सूरत का आगाज भी इसी लफ्ज से हो रहा है। तो बाकी इसके अलावा ये तमाम बातें पर इजमा है कि हरूफ मुक़त्तात का कोई हतमी मफ़हूम हमारे पास नहीं है। बस ये कुछ कयास हैं, कुछ बातें हैं ज़ौकी अंदाज में, कुछ बातें हैं जुज़वी तौर पर, और कुछ बातें ऐसी हैं जो सही भी करार हो रही है। जैसे मैंने आपके आगे ये तारीखी बात रख दी कि अली बाता ये मुख्तलिफ अशिया की शक्ल की तरफ भी इशारा करता है, लेकिन कोई हतमी तौर पर इनका मायनी हमारे पास मौजूद नहीं है।
सिर्फ जो बात हजूर से हमें पता लगी कि इन हरूफ मुकत्तात में से किन किन को आयत करार दिया गया। असल में ये राज है। अगर मैं अब आपको आसान लफ्जों में कहूँ तो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान, इसी वजह से अगर आप देखें तो जदीदी तफासीर के अंदर कुछ लोगों ने इसको आसान वर्ड्स में ये कहा है कि ये हरूफ मुकत्तात असल में कोड वर्ड्स हैं, किसके? अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान, वो ही जानते हैं इनके माने। तो ये है पहला तमहीदी बात। दूसरी तमहीदी बात मजमून के लिहाज से, तरतीबी नजूली के एतबार से अगर आप देखें, यानी कि ये बात मैं पहले भी बयान कर चुका हूं सूरतुल अलक के मुतालिक, जब मैंने वहां पर बयान दिया था कि किस तरह पहली वही, दूसरी वही, तीसरी वही, चौथी वही, अगर आप इस तरतीब से देखें तो आपको बहुत रहनुमाई हासिल होगी। जैसे कि किसी बच्चे ने पहली क्लास पढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर उसकी बेस बनती चली, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता समझाए। इसी तरह हमारे नबी की भी बेस बनी। पहली वही में वो 7 आयात या वो 5 आयात, फिर दूसरी वही में 7 आयात, फिर तीसरी वही में वो 7, इस तरह हमारे नबी की एक बेस बनती चली गई, एक उनको लर्निंग कराई गई। तो तरतीबी नजूली के एतबार से अगर आप देखें तो ये दूसरी तमहीदी बात इसके अंदर आएगी। इस बारे में पहली बात ये जान लें कि कुरान की तरतीबी नजूली के एतबार से इसमें कुछ बातें क़यास की शक्ल में हैं, कुछ चीजें हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, कुछ बातें बुनियादी भी हैं, लेकिन कोई हतमी और यकीनी बात हमारे पास नहीं। ये मैं बातें बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ क़यास कर लिए, कुछ आराए कान कर लिए, मगर मैं क्योंकि आपके सामने दलील की शक्ल में ला रहा हूं तो इसलिए वजह से मैं आपके आगे बात वाज़ेह कर दूं। तो कुछ क़यास हैं, कुछ बातें हमारे पास मौजूद हैं, बुनियादी भी है, बात समझ भी आती भी है, लेकिन हतमी और यकीनी बात हमारे पास मौजूद नहीं है। अलबत्ता कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर इजमा है और उन पर इख्तलाफ भी होता है। जैसे कि पहली वही वो 5 आयात, कौन सी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, सूरतुल अलक, सूरतुल अलक, सूरत नंबर 96। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये पहली वही। लेकिन हजरत जाबिर बिन से ये बात रवायत है कि उनके ये अल्फाज हैं कि पहली वही सूरतुल मुदस्सिर की 7 आयात, लेकिन अगर आप उसकी तफासीर को पढ़ें तो उसमें ये शहादत मौजूद है जिससे ये बात साबित हो जाती है कि वो पहली वही नहीं है, क्योंकि सूरतुल मुदस्सिर की पहली 7 आयात के शान नजूल में ये बात वाज़ेह है कि उसमें ये लफ्ज आए हैं कि मैंने आसमान की तरफ जब देखा तो वही फरिश्ता जो मेरे पास हिरा में आया था वही पूरे अफक पे। तो यहां पर यह बात मालूम हो गई कि हीरा में को पहली वही नाजिल हुई थी या पहली मुलाकात का जिक्र मौजूद है। अब सवाल ये है कि इन वही में तरतीब क्या है, पहली वही, दूसरी वही, इसमें तरतीब क्या है? तो वैसे तो इसका कोई शख्स यकीनी तौर पर, हतमी तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन बहुत से हजरात ने तहकीक की है और इस बात पर इजमा है, और मैं उनकी तहकीक पर जाता हूं जिनकी तहकीक ये है कि पहली वही सूरतुल अलक की 5 आयात, दूसरी वही सूरतुल नून जिसको आज हम इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं, या सूरतुल कलम उसकी 7 आयात। इसी वजह से मैं आपको ये दूसरा तमहीदी मजमून बयान कर रहा हूं क्योंकि आज हमारी उन्हीं 7 आयात पर गुफ्तगू हो। तीसरी वही सूरतुल मुज़म्मिल की 7 आयात, चौथी वही सूरतुल मुदस्सिर की 7 आयात, और पांचवी वही सूरतुल फातिहा मुकम्मल 7 आयात, छठी वही सूरतुल लहब मुकम्मल 5 आयात। वैसे तो अगर आप इस तरतीब को देखें तो बड़ी खूबसूरत तरतीब नजर आती है, 5 7 7 7 7 5। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक आरा है, राय है, कोई हतमी बात नहीं है, लेकिन जो आरा कायम की गई उस पर इजमा है, लेकिन इब्तदाई दौर की आयात जो है, मगर उनसे पहले कौन कौन सी दूसरी आयात हैं उसमें कुछ इख्तलाफ है, वो अपनी जगह पर मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं जो मैंने आपके आगे रखी, क्योंकि मैं उन पर इस पर फिल वक्त डिटेल से गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा, क्योंकि उसमें भी मुख्तलिफ आरा है, मुख्तलिफ
मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी राय रखी है, जैसे मैंने आपको इशारतन हजरत जाबिर की बात आगे रखी है, मगर मैंने आपको वो बात आगे रखी जिस पर इजमा है बहुत से मुफस्सिरीन का, बहुत से मुअल्लिमीन का, बहुत से तफसीर के लोगों का और मुहद्दिसीन का, तो मेरा भी उस पर ही इजमा है। इब्तदाई आयात के अंदर कुछ मुश्तरका मजमून है, ये जो मैंने अभी आपको तरतीब बताई है 5 और 6 वहियों की, इसके अंदर जो पहली 4 वहियां हैं, उन 4 वहियों में जो आयात हैं उसमें कुछ मुश्तरका मजमून है, यानी कि एक ही मजमून चारों वहियों में बार बार है। कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने 4 वहियों में उसी मजमून को दोहराया। उसमें सबसे पहले ये बात जान लें कि 3 मजमून है जो इन 4 सूरतों में आए। वो 4 सूरतें सूरतुल अलक की आयात, सूरतुल नून की आयात जो आज हम पढ़ रहे हैं, सूरतुल मुजम्मिल की और सूरतुल मुदस्सिर। इन इब्तदाई 4 सूरतों की आयात के अंदर वहियों में 3 मजमून बड़े मुशतरका हैं, वो बड़े अहम है, वो मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। पहला मजमून जो हमें इसमें मिलेगा कि सब सूरा के शुरू में खसूसी खिताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और उसके साथ हमें उस दौर के हालात और उनका अक्स मालूम होता है, यानी कि किन हालात से हुजूर गुजरे, क्या वो मामलात थे, क्या वो परेशानियां थी, क्या वो लोगों की बातें थी, वो क्या वर्बल परसिक्यूशंस हो रही थी, वो क्या अल्फाजी हमले हो रहे थे, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचा जा रहा था और उस दौर में वो गुजरे। और उसमें सबसे अहम बात ये कि हुजूर को उस दौर में फिर अल्लाह ताला की तरफ से क्या हदायत है। यहां मैं ये बात दोबारा आगे नहीं दोहराऊंगा, मैं शुरू में ही दोहरा देता हूं, और ये मैं बात अक्सर भी कहता हूं कि आप इसको बाय डिफॉल्ट जोड़ लें आज के दौर के साथ। अगर कोई शख्स दीन पर चलना चाह रहा है, दीन पर चलने की ख्वाहिश रखता है या दीन पर चल रहा है, अभी उसका इब्तदाई मामला है, तो जो मामला वहां पर पेश आए वो ही हम यहां पर भी पेश हैं, क्योंकि कुरान मजीद हर दौर के हर शख्स के लिए मुकम्मल किताब है। तो अल्लाह ताला के नबी के लिए अगर उस तरफ ये बात वाज़िया हो रही है तो वो हमारे लिए भी एक नसीहत हो रही है। तो आप उस दौर के मामलात को आज के मामलात के साथ क़यास ना कीजिए, मगर उन हालात को अपने साथ जरूर आगे रखिए और उसमें से गुजरे। तो एक लिहाज से नबी की सीरत का मौजू और दीन की जद्दोजहद में क्या हदायत दी गई, ये पहला मजमून है। दूसरा मजमून इसमें जो आया है चारों वहियों में, बड़ी अहम बात, वो आखिरत का है। जब आप देखेंगे तो उसमें एक तरतीब यूं नजर आएगी कि सूरतुल अलक के में आखिरत का सिर्फ फलसफा बयान हुआ, यानी कि आखिरत पर ईमान क्यों जरूरी है, क्योंकि यहां पर जो 3 मजमून आ रहे हैं मैं उनकी सिर्फ थोड़ी थोड़ी वजाहत कर कि हर 4 सूरतों में उस मजमून को कैसे खोला गया। तो यहां बिल आखिरा को, ईमान बिल आखिरा को यूं खोला गया, वाज़िया किया गया कि सूरतुल अलक में ये बात कही गई कि आखिरत क्यों जरूरी है। इंसान का तर्ज अमल को दुरुस्त रखने के लिए एक ही शय है, वो क्या है, ईमान बिल आखिरा। वो क्या कहा गया सूरतुल अलक में, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, हकीकत ये है कि इंसान तो खुली सरकशी में है, यानी कि इंसान तो दस्तदराजी करेगा ही करेगा, वो अपनी हदूद से तजावुज करेगा ही करेगा। इसका बिल्कुल वाज़िया मुशाहिदा आप यूं देख लें कि जब तक इंसान में वो खौफ नहीं होगा, अपने रब की पकड़ का खौफ कि मुझे जवाबदेही करनी है, मुझे अपने रब के आगे खड़ा होना है, एक एक सांस का जवाब देना है, सुबह से शाम तक मैं दुनियावी मामलात में कितना चलता रहा और दीन पर कितना चलता रहा। इसका मुशाहिदा मैंने यूं लगाया है कि अगर आप सिरे का एक धागा एक तरफ अगर नहीं बांधेंगे तो धागे में तनाव नहीं आए, अगर दूसरी तरफ खुला है, बेखौफी है, बेइल्मी है, बेलगामी है, तो फिर धागा खींच ही गए, उसमें ढील ही ढील है, फिर आपको तो अल्लाह की हदूदों का भी अंदाजा नहीं रहेगा। अगर आपको अल्लाह की हदूद का पता लग जाए कि ये वो हदूद है, इससे आगे नहीं जाना, इससे आगे मेरा धागा नहीं जा सकता, तो आपका तनाव खींचा।
یعنی کہ یہ اللہ کا حکم ہے. جب ہمیں اللہ کے حکم کا علم ہی نہیں اور اگر ہے تو ڈر نہیں ہے. ڈر کس چیز کا؟ یہاں پر وہ بات آ رہی ہے کہ انسان تو کھلی سرکشی میں ہے ہی ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں کوئی پکڑ نہیں, میں کوئی زیادتی کرتا ہوں کوئی پکڑ نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی کہنے والا نہیں. اگر میں اللہ کے احکامات پر نہیں بھی عمل کرتا تو کون پوچھے گا مجھ سے؟ ہاں دنیاوی کام نہ کیا, جیسے اگر آپ دفتر کے لحاظ سے دیکھیں, اگر یہ کام نہ کیا تو باس پوچھے گا, باس تو بعد میں پوچھے گا, میرا اوپر کا سینئر باس پوچھے گا, اس سے بھی اوپر والا پوچھے گا, تو مجھے تو جواب دینا پڑے گا. اگر یہ عمل نہ کیا وہاں مجھ سے کون پوچھے گا؟ پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. آخر یہاں ہمیں بھیجا گیا بقول اللہ تعالی کے کہ یہ امتحان ہے. تو کیوں ہے امتحان؟ تاکہ پتہ لگے کون بہتر ہے, کون آگے ہے. اور یہ انسان سرکشی کرنے کی وجہ اسی کی بات آگے کہی, اور رہا استغنا, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا کہ میرے پر کوئی پکڑ نہیں. وہ اپنے آپ کو طغیانی میں پایا تھا, حد سے آگے نکل بھی جائے تو پوچھنے والا کوئی نہیں. میں نے آپ کو جیسے بات دی, اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ رات کے ٹائم میری کلاس ہونی ہے, کھڑا ہونا ہے رب کے آگے, وہ پوچھے گا صبح سے لے کر شام تک کتنا وقت تو نے دین میں خرچ کیا اور کتنا وقت تو نے دنیا میں خرچ کیا, پھر تو مجھے دین میں ٹائم لگانا پڑے گا. پوچھنے والا کوئی نہیں تو میں جواب دینے کی پریشانی کو, تو طغیانی میں چلا گیا. تو کیا کیا؟ 98% اپنے دنیا میں خرچ کر لیے. ہاں کچھ رہ گئے, ان میں سے چند آدھ لوگ انہوں نے جدوجہد کی تو ان کو توفیق ملی. کیا انہوں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی؟ دین کیا کہتا ہے یہ ضروری ہے. دین کو نافذ کرنا ہے, دین پر عمل پرآمد آپ کا اپنا معاملہ ہوگا, پر اس کو نافذ تو کرو. خود نماز پڑھی پر اس کا مطلب کیا تھا یہ سمجھنا آپ آیا. اللہ تعالیٰ کے نبی جیسے نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے تم محسوس کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. نہیں, اگر تمہارا ایمان اس سے کمزور ہے, کمتر ہے, تو یہی محسوس کر لو, یہی جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب وہ درستی تو ہمارے میں موجود نہیں. جیسے کہ اس کی حقیقت مجھے کیونکہ بات کے ساتھ بات جڑ گئی ہے, میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. جمعے کے وقت دیکھتے ہیں اکثر آیت کل پرسوں جمعہ ہے ہمارا, پرسوں, تو اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم کہ جمعے کے نماز کھڑے ہونے سے چند منٹ پہلے ہی ہے, جبکہ اس سے پہلے کی اس کی کیا اہمیت ہے, اس کی کیا فضیلت ہے, اس جمعے کے دن کی کیا اہمیت ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں. وہ بھی ایک دن کی طرح ایک دن ہے اور نماز کی طرح ایک عام سی نماز ہے, پڑھ کے چلے جائیں گے. تو انسان نے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس کر دیا, تو دھاگا باندھا ہی نہیں, تو کوئی حکم ہمارے سر پہ نہیں, تو وہ طغیانی میں چلا گیا. کیوں گیا؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا اور راہ استغنا, مجھ کے اوپر کوئی پکڑ نہیں. جھوٹ بولتا ہوں زبان پہ کون سا چھالا پڑ جاتا ہے؟ اگر چھالا پڑ جائے تو 10 دفعہ سوچے گا انسان کہ اب میں نے جھوٹ نہیں بولا. لیکن فی الوقت ایسا کچھ نہیں ہو رہا, جھوٹ بولی جا رہا ہے, بے حیائی کی جا رہا ہے, حد سے آگے نکلی جا رہا ہے اور نکلی ہی چلی جا رہا ہے. اس کو پریشانی صرف اپنے دنیاوی معاملے کی ہے. اگر آپ نے اس بات کو صحیح رخ پر قائم کرنا چاہتے ہیں, صحیح روش پہ اس معاملے کو قائم کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو ایک ہی چیز کی ضرورت ہے. وہ کیا؟ وہ بھی سورۃ العلق کی آگے آیت میں بیان کر دی, ان الی ربک الرجعی, سچ تو یہ ہے کہ تمہارا پروردگار ہی کی طرف تم سب کو لوٹے جاؤ. اگر آپ کا یہ یقین ہوگا تو آپ کے دھاگے کا دوسرا سرا کدھر ہوگا؟ اللہ کی طرف. تو اب دھاگا ٹائٹ ہوگا. تو یہی ہے وہ ایک وجہ جو اس دوسرے مضمون کو ان چاروں صورتوں میں خاص کر پہلی وحی میں یوں واضح کیا. اگر اس بات کا خیال رکھیں, اگر اس بات کا خوف ہمارے دل میں رہے, تو انسان تیر کی طرح سیدھا رہے گا. جیسے میں نے آپ کو کہا دھاگے کا ایک سرا, تو دوسرا سرا تو آپ کے ہاتھ میں ہوگا. جیسے ہی آپ نے یہاں ڈھیل دی تو دھاگا ڈھیلا ہو جائے گا. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کہیں حد سے آگے گزر گیا. تو پہلی صورت کا دوسرا مضمون فلسفے کے آخر میں اس کو یوں بیان کیا گیا, جبکہ سورۃ النون میں جو ہم آج پڑھیں گے اس مضمون کو بڑے سادہ اور تمثیلی الفاظ میں کہا گیا. یعنی کہ یہ وہی مضمون ہے جو سورۃ العلق میں اور اب دوسرے میں بیان ہے. جب انسان کے دل میں یا اس کے قلب میں اللہ کا خوف نہیں رہتا
تو وہ سب سے پہلے کس چیز سے گرتا ہے؟ یا وہ گرے گا جب اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا. وہ ہے سب سے پہلے اخلاق کے اعتبار سے. اخلاقی اعتبار سے وہ گر جائے گا. جب اچھا بولے گا ہی نہیں تو اچھی تبلیغ کیسے کرے گا؟ اور اچھی تبلیغ کا میں یہاں پر ایک الفاظ بیان کر دوں, آگے جا کے تفصیل کے ساتھ لفظ کر دوں گا. اچھا بولنے سے مراد نرم بولنا نہیں ہو. یہ بات اپنے ذہن میں ڈال. نرم بولنا نہیں ہوتا. بولنا جو بات سیدھی رہے, جو بات تنی رہے. بات کرو, سچ کرو, سیدھی کرو اور کھڑی کرو. نرم اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر حد سے زیادہ کچھ نرمی کا معاملہ ہے. مطلب کہ اس کو دوسرے الفاظ میں آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جب انسان کے دل میں خوف نہیں رہتا تو وہ اخلاقی اعتبار سے اس طرح گر جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے دلوں سے بھی بدظن ہو جائے. بات کرو, کھڑی کرو, واضح کرو. اگر تبلیغ کرو تو دونوں رخ رکھو. اللہ تعالیٰ کی رحمت, اس کا جلال بھی قائم رہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک رخ کے ایک تصویر کی طرف. اگر یہ نہیں کرو گے, یہ حکم ہے, یہ تمہارا حکم ہے, تمہیں یہ کرنا ہے, یہ تم پہ فرض ہے. یہ ایک رخ ہے. اور دوسرا رخ کیا ہے؟ جلالی انداز میں. نہیں کرو گے تو یہ ملے گا, نہیں کرو گے تو یہ ہوگا. اس لیے تو قرآن میں یہ لفظ بار بار آیا کہ ہم نے ان کو بتا دیا آخرت پہ آنے کے بعد. تو جب اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رہتا تو انسان اخلاقی اعتبار سے سب سے پہلے گرتا ہے اور پھر ذہنی شعور سے گرتا ہے. وہ پہچان نہیں سکتا کہ صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے. وہ پہچان نہیں سکتا کہ صحیح وقت کو لگانا کہاں ہے اور فارغ وقت کیا ہے. اور پھر اسی مضمون کو سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر میں آپ یوں دیکھیں گے کہ قیامت کے دن کا پھر نقشہ کھینچا جائے گا. اس کی دہشت کا, جہنم کے عذاب کی ایسی جھلک دکھائی جائے گی. خبری انداز بات کی جائے گی, خبر دی جا رہی ہے, آگاہ کیا جا رہا ہے, وارن کیا جا رہا ہے اس مضمون کو. سورۃ المدثر میں یوں الفاظ آئیں گے, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. اور پھر اسی کی تصویر سورۃ المزمل میں یوں آئے گی, وہ دن جس دن لوگوں کو بچوں سے بوڑھا کر دیا جائے گا, اس کا بوجھ اتنا ہوگا. یہ یوم یجعل الولدان شیبا. تو اس طرح یہ دوسرا مضمون ان چاروں صورتوں میں یوں واضح کیوں ضروری ہے, کیا ہے, پھر تمثیلی بات. تیسرا مشترکہ مضمون مخالفین کا تذکرہ. اور اصل میں یہ جو حصہ ہے یہ بالکل ابتدائی دور کا نہیں ہے, یہ بات جان لیں. یہ اس دور میں نازل ہوا جب کشمکش شدت اختیار کر گئی, جب تکذیب ہو رہی تھی, جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں اعلانیہ جد و جہد شروع کر دی. تو ان آیات میں زمانی اعتبار سے بڑا فاصلہ ہے, لیکن کوئی نہ کوئی تو اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے جس کی وجہ سے ان کو جمع کیا. یعنی کہ ابتدائی آیات اور پھر بعد کی آیات, کوئی تو وجہ ہے جس کو جمع کیا گیا. یعنی کہ یہ تین حصے ان چاروں صورتوں میں جمع کر دیے. یہاں ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ اس صورت کے اندر خاص جو اب بنے ہم سورۃ النون جس کو آپ شروع کریں گے, میں اس سے پہلے اس کی کچھ وضاحت کر دوں کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا وہ سب کافر. لیکن جو بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی کہ سب کافر برابر نہیں, یہ سمجھیں. تو اسی طرح تمام مومن بھی ایک سطح پر نہیں ہے. اسی طرح منکرین, کیونکہ یہاں پر لفظ منکرین آنا ہے اس صورت میں اسی طرف اشارہ کروں گا. اسی طرح منکرین جنہوں نے نہیں مانا ان میں ابو طالب بھی تھے, جبکہ ان کا معاملہ کچھ اور ہے. ان کو حضور سے محبت بھی تھی اور وہ محبت صرف رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں تھی, کیونکہ وہی رشتہ داری اگر آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ابو لہب کے ساتھ بھی تو تھی, وہ بھی تو ان کے چچا تھے. اس کا مطلب کوئی نہ کوئی طبی مناسبت تھی, کوئی نہ کوئی نیکی کا مادہ ضرور تھا, لیکن وہ ایمان نہیں لائے. تو جس طرح ایک سرے پر اگر ابو طالب ہیں تو دوسرے سرے پر ابو لہب ہیں, رشتہ داری میں دونوں قریب تر, مگر ابو طالب محبت کے لیے مددگار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پشت پناہ, ہمیشہ ان کی آپ نے سپورٹ کی. اور اسی اعتبار سے منافقین میں 3 کردار ایسے ہیں جن کو قرآن نے نمایاں کیا.
یہ بات بڑی اہم ہے. ویسے تو چھوٹے چھوٹے اور بھی کردار واضح کیے ہیں اشارتاً، مگر قرآن مجید کے اندر اگر کوئی بات حتماً آپ کے سامنے آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آگے کچھ وضاحت کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ہے. تو قرآن مجید میں 3 کردار ہیں جو واضح کیے گئے، اور یہ کردار آپ کو آج کے دور میں بھی ملے. یہ بات نہیں ہے کہ وہ نہیں ملے، ان میں کوئی نہ کوئی جو اوصاف ہوں گے وہ ان سے ملتے جلتے ضرور ہوں گے. تو ایک تو بدترین کردار ابو لہب، مخالفت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے شدید ترین، اخلاق کے اعتبار سے دیکھا جائے نہایت پست، بخیل اور بزدلی کے اندر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ، کوئی خیر اس میں موجود نہیں تھی سوائے ایک بات کے کہ وہ خوبصورت بہت تھا، سرخ رنگ کا، اس کا رنگ لگتا ہے جیسے انگارے کی طرح ہے. دوسرا کردار جو اس کے اندر آئے گا وہ ہے ابو جہل کا، جو قرآن مجید کے اندر جس کردار کو واضح کیا ہے. مخالفت کے اعتبار سے انتہائی شدید، مگر کردار پستی کا نہیں تھا. یہ بات شامل، ابو جہل کا کردار پستی والا نہیں تھا، وہ بخیل نہیں تھا، بزدل نہیں تھا. روایت میں آتا ہے جب اس سے سوال کیا گیا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ محمد جھوٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو پھر پوچھا گیا تو کیوں نہیں مانتے، تو اس نے صاف کہا کہ دیکھو ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ایک مقابلہ ہے، انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے بھی ان سے بھر کر کھانے کھلائے، انہوں نے دسترخوان بچھائے، ہم نے بھی ان سے بھر کر دسترخوان بچھائے، تو ابھی تک تو ہم ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملائے چلے جا رہے ہیں. اگر اب نبوت ان کی مان لیں تو ہم ہمیشہ کے لیے ان کے غلام ہو گئے. تو دیکھا جائے اس نے سچی بات کہی ہے، جھوٹا الزام نہیں لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے جھوٹا نہیں کہا، ان پر جھوٹا الزام نہیں لگایا. اصل میں اس کے اندر جو سب سے زیادہ چیز تھی نا وہ تھی قومی عصبیت. کبھی موقع ملا تو میں اس کو وضاحت کروں گا ضرور یہ کیا چیز ہے. قومی عصبیت یعنی کہ قوم کے لیے کھڑے ہو جانا. اس نے بس حضور پر ایک ہی الزام لگایا کہ محمد نے ہمارے قبائلی جمعیت کو منتشر کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ باپ کو بیٹے سے علیحدہ کر دیا، بھائی کو بھائی سے علیحدہ کر دیا، بیوی کو شوہر سے جدا کر دیا. تو یہی الزام لگایا. اور پھر وہ بزدل نہیں تھا، یہ بھی بات جان، یہ بھی میں نے طریق سے بات نکال کر آگے رکھی ہے، کیونکہ اس نے اگر باطل نظریے کے لیے کھڑا ہوا تھا تو اس باطل نظریے کے لیے اس نے اپنی گردن بھی کٹوائی. اور پھر جب اس کی گردن کاٹ رہی تھی تو اس شان سے اس نے کہا کہ جب میری گردن کاٹنا تو ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب تم نیزے پہ چڑھاؤ تو پتہ لگے کسی سردار کی گردن. تو وہ بزدل نہیں تھا. تو اسی الفاظ میں اگر میں آپ کو سادے الفاظ میں کہوں، یہ ایک ایسا کردار ہے کہ حضرت عمر کے ایمان لانے سے قبل یہ ہم مساوی تھے. ابو جہل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے قبل یہ دونوں ہم مساوی معاملات تھے، ہم مساوی شخصیت تھی. وہ عمر بن ہاشم اور وہ عمر ابن خطاب. ایمان لانے سے قبل یہ دونوں شخصیت مساوی تھی، کردار کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے، نسلی برتری کے احساسات سے، اور قبائلی عصبیت کے حساب سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی کے حساب سے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے. تو پھر بہادری اور شجاعت یہ چیزیں بھی ان میں مشترکہ تھیں. ہاں، اس بات کا ثبوت جو میں نے آپ کے آگے رکھ رہا ہوں کہ یہ دونوں ہم مساوی تھے، اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے آگے ہم وزن ان دونوں کو پیش کیا اور کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، عمر ابن ہاشم یا عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر باطل پہ کھڑے ہو جائیں تو کھلم کھلا مخالف سامنے سے وار کریں گے اور باطل کے نظریے کے لیے قربانی دینے کو بھی تیار ہوں گے، گردن کٹوانے کو تیار ہوں گے. کوئی بزدلی نہیں، کوئی مال سے بھی محبت نہیں، یہ بات جان لیجیے. تو اس اعتبار سے یہ ہم وزن تھے. اور پھر دوسری بات اپنی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو چنا
और उनको उम्र फरूख बना। और यकीनन इसमें ज़ाहिरी सी बात है कि अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर जानते हैं किस लिहाज से अल्लाह ताला ने उनको चुना, और उसमें क्या इल्म है वो अल्लाह ताला जानते हैं। लेकिन जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको पेश किया तो उससे भी ये बात साबित हो जाती है कि किसी न किसी एतबार से ये हम वजन जरूर थे। तीसरा किरदार जो कुरान ने पेश किया, एक तो बदतरीन आ गया, एक सेंटर में आ गया, अब तीसरा। मैंने इस तरतीब को जब देखा तो पता लगा तो एक तो हो गया ना बदतरीन, तो मैं उसको लिहाज से समझ गया, एक आ गया सेंटर में, तो अब तीसरा कौन होना चाहिए, इससे बेहतर होना चाहिए। मगर ये जो तीसरा है ना, ये उससे भी नीचे है। ये बड़ी अजीब सी तरतीब मुझे वाज़ेह हुई है, अपने अपनी बात का मुतालिया है। तीसरा किरदार जिस पर अल्लाह का गजब सबसे ज्यादा भड़क, भाई देखा जाए इसकी वजाहत थोड़ी सी मैं यूं कर लूं। एक तो वो किरदार जो खुलम खुला ऐलान कर, इनकार कर रहा है, ऐलान कर रहा है उस बदतरी का इखलाकी लिहाज से, यानी कि वो नजर आ रहा है कि ये गिरा तरीन इंसान, ये सजा का मुस्तहिक है। एक जरा ऊपर आ गया, अपने बातिल के लिए खड़ा है, बुज़दिल भी नहीं है, बखील भी नहीं है। मगर ये जो तीसरा किरदार है ना, ये छुपा हुआ है। इसी वजह से अल्लाह ताला का गजब इस पर सबसे ज्यादा महत्व है, और इसी किरदार की आज सबसे ज्यादा हमारे दौर में आम है। पहले ये समझ लें किरदार है क्या। ये वो शख्स या वो किरदार है जिस पे अल्लाह का अजाब सबसे ज्यादा भड़का या भड़कता है। उस वक्त में भड़का था और अब भी वो भड़कता है। ये दोनों मिसालें आगे रखिए ताकि उस दौर को इस दौर के साथ जोड़ लीजिए। वो जो कानूनी इतबार से इस्लाम में आगे है, वो शख्स जो कानूनी लिहाज से इस्लाम में तो आ गया है लेकिन वो अंदर से मुनाफिक है, तो अल्लाह का अजाब उस पर सबसे ज्यादा भड़कता है। इसके बारे में कहा, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, यकीन जानो कि मुनाफिकीन जहन्नुम के सबसे निचले तबके में। मैंने आपको कहा ना, एक तो वो शख्स हो गया जो खुलम खुला ऐलान कर रहा है, एक वो ये छुपा हुआ शख्स। अगर मुख्तसर कहें तो कौल और अमल का तजाद है। आज तो यही हो रहा है कि इंसान कौली लिहाज से तो कह रहा है मुझे अल्लाह पे एतबार है, मैं अल्लाह को मानता हूं, बेशक अल्लाह के पास जाना है, पर अमली लिहाज से खाली तजाद है। तो जैसे मुनाफिक इधर थे वैसे ही मुनाफिक उधर भी, यानी कि दीन इस्लाम में। तो यानी वो मुनाफिक कौन थे? जिनको ईमान अच्छा लगता था, बात सही लगती, हक लगती, वो चाहते थे कि कोई पेशकदमी हो और हम इसको कबूल कर लें, हम इस्लाम को कबूल कर लें, पूरी तरह इस पर कायम हो जाए। लेकिन उनकी मुसाहलत, उनकी चौधराहट, उनकी दौलत, उनकी सरदारी, उनका इक़्तिदार, वो बीच में था। वो क्या करता? आज ये मुनाफिक इस तरफ भी, बात तो तुम सही कह रहे हो, खरा मुझे अपने रब के आगे ही होंगे, तो चलो कोई बात नहीं, दो टोके इसको भी लगा देते हैं, दो छुरियां इसको भी फेर देते हैं, तो कोई बात नहीं। बात तो तुम सही कह रहे हो कि पढ़ना चाहिए कुरान मजीद, पर अभी फिल वक्त नहीं है, उसके एवज मुझसे कुछ पैसे ले लो और किसी मौलवियों या कारियों या बच्चों को बुला के कुरान पढ़ा लो, फिल वक्त मैं इसके पढ़ना नहीं चाहता। आज इंग्लिश बोलने या इंग्लिश सीखना हमारे लिए हद से ज्यादा जरूरी है। दो बंदों में इज्जत मिलेगी, रुतबा कायम होगा, मगर अरबी और अरबी से मुताल्लिक कुरान मजीद के अल्फाज की दुरुस्तगी वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। आज हम ये देखते हैं अपने घरों को आबाद करने के लिए ये पूछते हैं कि ये क्या करता है, कितना कमाता है, क्या खर्चता है, किस तरह लाता है, क्या इज्जत है, दुनिया में क्या इक़्तिदार है। ये नहीं पता कि ईमान की तो हालत फटी होगी, वो तो जाया हो चुका, वो तो दफन हो चुका। तो बात तो सही लगती थी उनको, दिल चाहता था कि पेशकदमी हो, ये लफ्ज है, वो चाहते थे कि हम इसको पा लें, लेकिन उनकी मुसाहलत, चौधराहट, दौलत, इक़्तिदार, ताकत, ये चीजें आड़े आती थी, ये चीजें थी जो बीच में पड़ जाती थी।
اس وجہ سے وہ شخص ڈوب جاتے رہ جاتے۔ تو اس طرح کے شخص کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ آج بھی یہ بات واضح ہے، اس کی خواہش ایک ہی ہے۔ یہ بات اگر قرآن مجید واضح کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کامن ہے، جب تک قیامت آئے گی منافق کے اندر خواہش یہی رہے گی۔ وہ کیا کہ وہ کوئی نہ کوئی مصلحت چاہتا تھا، وہ کوئی نہ کوئی مداہنت کی روش اختیار ہو جائے، آسان الفاظ میں کہوں تو کچھ لے دے کے کوئی مسئلہ حل ہو جائے، بھئی مجھے نہیں کرنا پڑے، تو کچھ ایسا معاملہ ہو کہ کچھ کرنا نہ پڑے۔ جیسے وہ منافق لوگ جو دائرے اسلام میں قانونی اعتبار سے تو تھے، وہ یہ کیا کہتے تھے سورۃ البقرہ کے اندر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، پہلے ان کی الفاظ سن قرآن مجید۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو یہ کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، فساد کو نہیں پھیلانے والے۔ لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ مل جل کے کام ہو جائے، اصلاح ہو جائے، لڑائی جھگڑا نہ کرنا پڑے۔ جیسے کہ ایک محاورہ تن کہا جاتا ہے کہ اگر گڑ دے کے مار دیا جائے تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں پھر وہ اس کا گراؤنڈ بنا رہا ہوں، اس کی وضاحت ابھی اصل بات یہ تھی کہ وہ شخص تھے جو یکسو نہیں ہو پا رہے تھے، دل قائم نہیں ہو رہا تھا، ٹھک نہیں رہا تھا، پتہ نہیں جیت کس کی ہو۔ بقول تمہارے کہ بھئی اس کو تر کر دیا جائے، اس کو دنیا کے پیچھے زیادہ نہ بھاگا جائے۔ ان لوگوں کا تو یہ تھا نا کہ پتہ نہیں محمد جیتے گا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ سردار، تو ہم کس کے پیچھے جائیں؟ تو ایک طرف تو ان کے کافر ان کو بلاتے تھے اور دوسری طرف ان کو دعوت حق اپنی طرف کھینچتا تھا جو ان کو بات صحیح لگتی تھی۔ تو اس میں جو کردار ہار گیا، جو نہیں آگے آ سکا، اور اگر اس طرف آ بھی جاتا تو منافق ہی آتا، تو اصل میں دوسرے الفاظ میں کہیں وہ اس لیول کو بھی نہیں پار کر سکا۔ وہ تھا ولید بن مغیرہ جو یہاں پر واضح کیا گیا۔ یہی بات اب میں ذرا اس بات کو ذرا گرا اس کی کھول دوں، قل یا ایھا الکافرون، یہ دلیل ہے اس بات، لا اعبد ما تعبدون، تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری طرح ہو جاؤں، تم چاہتے ہو میں تمہارے معبود کو پاؤں، تم چاہتے ہو میں تمہارے معبود کی عبادت کروں، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، پھر جاؤ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ کیونکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ کچھ مل جل کے مسئلہ حل ہو جائے، کچھ تم ڈھیل دے دو کچھ ہم ڈھیل دے دو۔ یہی آج ہمارے دور میں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے روزہ نماز زکوٰۃ حج، بس دیٹس اٹ، فنش، دس از اسلام۔ بھائی حج کی توفیق ہو رہی تو کر لیں گے، آج کل تو ویسے ہی حج کوئی 12-13 لاکھ یا 15 لاکھ پہ چلا گیا، بھائی توفیق ہوگی تو ٹھیک ہے، اور مڈل کلاس کے لیے تو نہیں رہی، معجزہ ہی ہے جو ہو جائے۔ تو باقی کیا بچا؟ زکوٰۃ، وہ تو ہم دے رہے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں دے رہے ہیں، پر گن کے نہیں دے رہے کہ پوری ہے کہ کمی تو نہیں رہ گئی، تاکہ پورا حساب دیا جائے، بھائی جتنا ہے دے دیا، جبکہ ہمیں پتہ ہے بینک بیلنس اور سونا موجود ہے، ہم پر یہ چیزیں واجب ہیں، ہم پہ یہ چیزیں فرض ہیں، مگر نہیں ضرورت ہے۔ اب کیا بچا؟ روزہ۔ آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ آ گیا، کیا خود تو رکھ نہیں رہا تو دوسروں کو رکھا دیا، کیوں؟ کوئی بہانہ سوچ کے کہ بھئی ہمیں بیماری ہے، ہمیں انزائٹی ہے، ہمیں فلاں ہے، ہمیں جبکہ رہ ایسی میرے ہیں نا، ہاں تو پھر بھی وہی ہے، مگر اپنی جان چھڑائی تو دوسرے پہ ڈال دی، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب تم ایسی بیماری میں مبتلا ہو تو اب تو بیماری بھی نہیں تو روزہ رکھ، اور اگر روزہ رکھ بھی لیا تو وہ منافق والی بات، کیا روزے کے کوئی احکامات کا علم ہی نہیں ہے کہ کون سی بے حیائی کو دیکھنا، کون سی بے حیائی کو نہیں دیکھنا، پھر پورا دن تو گھر میں بیٹھنا، لگا لو کوئی ننگی فلم، لگا لو کوئی بے حیائی کا اڈا کھول لیتے ہیں، چلو رات کو کہیں پھرنے چلتے ہیں، روزے کے دوران تو باہر چلتے ہیں، تو باہر پھر اسی بے پردگی میں پھرتے ہیں، بے حیائی میں پھر، تو روزے کا اہتمام تو ہے نہیں، تو ہے یا نہیں ہے برابر ایک ہی بات، کالے کے ساتھ اور رہا استغنا، انسان اپنے آپ کو سرکشی میں پا رہا ہے، کیوں؟ اگر یہ حرکتیں ہوتی تو اوپر سے اگر ڈنڈا پڑتا تو بندہ درست نہ ہو جاتا، کوئی ہاتھ ہی نہیں۔ تو باقی بچی نماز،
तो ठीक है, जैसी भी है टूटी फूटी, वल फज्र वाला याद उसमें वजाहत से कहेंगे कि ये तालियां पीटती, अल्लाह अकबर, जिस स्पीड से पढ़ी जाती है, जिस स्पीड से, अस्सलाम वालेकुम, ओ ये गोली की तरह ये नमाज है। क्या हम इस तरह खड़े होते हैं अपने बॉस के आगे दुनियावी लिहाज में? अगर वो खड़ा है तो नहीं, तो फिर अल्लाह के आगे खत्म ही कर दी अपनी। तो असल में ये वो मुनाफिक थे जो चाहते थे, इसी के ऊपर तो कुलियायुल काफिरून की मैंने आपको दलील एक दी कि वो चाहते थे कि कुछ ले दे के मसला हल हो जाए। और जब इनसे पूछा गया ये क्या कर रहे हो, तुम जान नहीं रहे कि ये हक है, ये हराम है, ये हलाल है, ये बेईमानी है, ये इसमें कुछ अंदाजा तो करो। तो हम तो फसाद कर दें, हम तो इस्लाह कर दें, हम तो चाहते हैं कुछ ले दे के मसला हल हो। बीच का रास्ता निकल रहा है आज हर इंसान, बीच का रास्ता। जैसे कि मैं ये बात कुछ दिनों पहले की, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, साथ साथ जोड़ रहा हूँ कि बाद में फिर वक्त नहीं लगता मुझे ये बात करने, नहीं आता जज्बा इस मामले में, कि इंसान चाहता है कि जो मेरे नबी ने 23 साल में अपने कुरान को मुकम्मल किया, जिन मुश्किलों से गुजर कर, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं देखना, एक 30 सेकंड के शॉर्ट क्लिप से मुझे सिर्फ आंसर मिलना चाहिए, दैट्स इट। क्या आज कुरान इस छोटी सी 30 सेकंड की क्लिप में रह गया आपके? बस दैट्स इट। मुकम्मल मुतालिया की कोई जरूरत नहीं रही, कोई फिक्र नहीं कि जितना वक्त मैं अपने दीन और दुनिया को दे रहा हूं इंग्लिश सीखने के लिए, एक से एक भर टीचर मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं, क्या दीन को सिखाने के लिए भी मैं कुछ कर रहा हूं? नहीं। तो फिर किस किस्म का इंसान? पे तो मुनाफिक कि ले दे के मसला हल निकालो। नमाज जनाजा में भी पैसा लगा दिया, वो शुरू से शुरू कर लो, बच्चा पैदा हुआ वहां से पैसा देना शुरू किया, तालीम के लिए उस्तादों के हवाले किया, कैसा है, हलाल है, हराम है, बेहतर है, दीन का है, दुनिया का है, कैसा उस्ताद है, बस दे दिया। किसके हवाले कर दिया? यहूदियों के हवाले कि किन लोगों के हवाले? वो उन लोगों के मजहबों के हवाले, उनके स्टाइलों के हवाले कर दिया। वो तो निजाम दुनियाई, वो जो आपका घरेलू निजाम था, आज आपके पाकिस्तान में नहीं है। आज 2023 में वो घरेलू जिसको आप कहते हैं जॉइंट सिस्टम, वो तो नहीं है कि बाप है, 4 बेटे हैं या 5 बेटे हैं, उनकी नौं है, वो एक घर में रह रही है, सारा एक निजाम है, बाप सब देख रहे हैं। अब हर बच्चा अपना अपना सिस्टम चला रहा है, वो इंडिपेंडेंट हो गया, वो निजाम तो खत्म हो। तो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जब बाप के मरने का वक्त आया तो वहां पर भी पैसे देके आप नमाज जनाजा पढ़ लें, क्योंकि हमें तो पूरी जिंदगी में तौफीक ही नहीं मिली कि हम ये सीख लें कि अपने बाप की नमाज जनाजा। तो ये हकीकत है कि ये मुनाफिकी की शक्ल है, और ये तीसरा किरदार है जिसके ऊपर अल्लाह का अजाब सबसे ज्यादा भड़कता है। तो वो था वलीद बिन मुगीरा। वापस अपनी जगह पर आता हूं। वो बड़ा सरमायादार, जो बड़ा चौधराही का था, उसके ताइफ में भी जायदाद थी, मक्का में भी जायदाद थी, उस लिहाज से वो माशरे के अंदर एक मुअस्सिर शख्स था। वैसे तो इसी एतबार से उतबा इब्ने रबई वो भी इसमें शामिल किया जा सकता है, मगर फिल वक्त वलीद बिन मुगीरा। तो इन 4 सूरतों के अंदर जिन जिन किरदार का जिक्र हुआ, अब वो सुन लें। सूरतुल मुदस्सिर के अंदर वलीद बिन मुगीरा को ताय्युन के साथ वाज़िया कर दिया गया, जैसे कहा जाता है नंगे अल्फाज के साथ वाज़िया कर दिया गया कि पता लग जाए कि ये है वो शख्स, वाज़िया। सूरतुल अलक के अंदर अबू जहल, सूरतुल लहब के अंदर बदतरीन वही अबू लहब जिसके ऊपर पूरी की पूरी सूरत है। सूरतुल नून के बारे में कुछ इख्तिलाफ है जो आज हम करेंगे, कि कुछ का कहना है कि इसके अंदर अखनस इब्ने शुएब है, लेकिन अक्सर लोगों का, जैसे कि मैंने आपको कहा, इजमा है कि यहां पर मुराद वलीद बिन मुगीरा है, और मेरा भी इस बात से इत्तेफाक है। और वलीद बिन मुगीरा का जिक्र इस आयत से ही हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि उस दौर में जब ये आयत नाजिल हो रही थी तो लोगों को पता लग जाता था, वाज़िया हो जाता था इन आयत के जरिए कि बात किसकी हो रही, कौन है जी ये। सूरतुल मुदस्सिर के अंदर तो बिल्कुल वाज़िया अल्फाज। तो यहाँ सूरतुल कलम में भी इस बात की दलील यूं ही आ जाती है, वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून। ये चाहता है कि कुछ तुम ढील छोड़ो तो ये भी ढील कर, जैसे
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये एक राय गई थी कि आपको कहा गया था कि आप हमें बताएं कि पूरे मक्का में कौन सी एक औरत है जिस पे आप हाथ रखें हम आपको उसका निकाह करा देंगे। आप हमें बताएं, हम आपको दौलत, इतनी दौलत से भर देंगे कि आपको अगली जरूरत नहीं रहेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से क्या कहा था? वो ढील वाली बात, कुछ तुम छोड़ो कुछ हम करें, कुछ तुम थोड़ी सी मामला को इजी करो हम भी करें। तो अल्लाह ताला के नबी ने क्या इस्तकामत का मुजाहिरा किया। क्या चाचा जान आप मेरे सीधे हाथ पे चांद और उल्टे हाथ पे सूरज भी रख दे, मैं तब भी इस दीन को नहीं छोड़ूंगा। ये कैफियत हमारी क्यों नहीं है आज कि कुछ भी हो जाए मैं दीन को समझूंगा, मैं दीन को नाफिज करूंगा, मैं दीन पे अमल करूंगा। अगर 9 to 5 मैं स्कूल ऑफिस में दे रहा हूं तो इसी तरह मैं 9 to 5 और दीन में भी दिया करूं। पर नहीं, तो वो ये चाहता था कि कुछ तुम डील करो कुछ हम डील करें, कुछ तुम छोड़ो कुछ हम करें। यानी कि ये नहीं कि सारी बातें तुम्हारी मानी जाए, ताकि जो मुश्किल हमारे इस टाइम ऊपर आई खड़ी है तो इसका कोई ना कोई नतीजा निकले। सूरह मुज़म्मिल में इस किरदार को यूं वाज़िया किया गया, वज़न्नी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन नअमति वमहिलहुम क़लीला, और तुम्हें झुठलाने वाले जो ऐशो इशरत के मालिक बने हुए हैं उनका मामला मुझ पर छोड़ दो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि ए नबी उनका मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं जानू उनको जाने, और इन्हें थोड़े दिनों की और मोहलत दे दो। ये बात तो इसलिए कही जा रही थी क्योंकि आगे आने वाले वक्त में फिर जब जंग हुई तो फिर वो मरे। तो ए नबी इनको छोड़ दो, इनको मेरे हाल पे छोड़ दो। इसी तरह अगर आपकी कोई बात नहीं मान रहा दीन के अंदर तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, वो जाने और उसका रब जाने, और आपका काम है दीन की दावत दो। तो ये 3 मुश्तरका मज़मून इन 4 सूरतों में आए हैं। असल में ये सारी बातें आपके आगे रखने की वजह ये थी, जरूरत ये थी कि इसमें मैं चाहता था कि आपके आगे ये बात वाज़ेह हो, ताकि जब आपका दिल करे तो आप इनको जब पढ़ें तो इसमें हमें सबसे अहम बात क्या मिलेगी, तारीखी एतबार से बहुत सी अहम मालूमात हमें मिलती हैं, मुनाफिकीन के किरदार हमें मुख्तलिफ मिलते हैं, ताकि आप आज के दौर में भी एनालिसिस कर सकें कि ये कितना बीमार है। आपको ये नहीं कहना कि किसी का नाम लेकर के तुम ये बीमार हो, तुम में ये प्रॉब्लम है, तुम में ये मसला है, ये नहीं कहना। जो कुरान मजीद का असलूब है, जो मेरे नबी का असूल है, उसी के ऊपर कायम रहना। रूल्स आगे रखने हैं, वो खुद सोचे कि इसमें मैं कहाँ हूं, इसमें मैं कहीं फॉल तो नहीं कर रहा, कहीं इन 6 बंदों में तो नहीं हूं, इन 4 असूलों में तो नहीं हूं, इन 10 असूलों में तो नहीं हूं। ये वो खुद सोचे, आपने किसी की निशानदेही नहीं करनी। अगर आपको लगे कि हाँ है तो फिर उसको अकेले में लेके जाए। तो मुनाफिकीन के किरदार आपको मिलेंगे, क्योंकि हम उनमें से फर्क करेंगे। ये मैंने जैसे आपको कहा कि सारे मुनाफिक एक जैसे नहीं थे। अगर रिश्तेदारी में देखे तो अबू लहब भी है और अबू तालिब भी है, दोनों चचा है ना, मगर देखा जाए तो अबू लहब किरदार में सबसे नीचे, कोई अच्छाई। और अबू तालिब देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुष्ट बना, मददगार, हमेशा उनको सपोर्ट किया। तो क्योंकि हम उन सबको बराबर नहीं कर सकते, तो क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। आज के लोगों की शक्लें बदली हुई हैं, बाकी हालात उनके भी वही तकरीबन। और फिर उनके बारे में क्या अंदाजे बयान हुआ, हमें ये मिलता है इन शुरू के अंदर। और फिर कुरान का क्या असलूब है, और सबसे अहम बात कि इब्तदाई दौर में जो मसले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आए और वो हालात, उनके बारे में हमें क्या रहनुमाई मिलती है। क्योंकि कोई शख्स चाहता है कि वो भी दीन पर आए, जैसे कि ये बात वाज़ेह है दलीलन, ये मेरा तजर्बा भी रहा है कि कोई शख्स दीन पर आया तो घर वालों से ही शुरू होगी इस पे कि कैसी अजीब बातें करता है। हमारे बावजदाद की जो रिवाजात आ रही हैं, तुम कहते हो कि मैं उनको रद्द कर दूं। रस्मो रिवाज जो तुम न्याज़े हम चली आ रही है, जो हम रस्मो रिवाज कायम किए, तुम कहते हो कि हम उसको रद्द कर दूं, तो ये भी सुनने में आता है। तो इसके अंदर भी हमें रहनुमाई मिलती है कि जो दाई दीन पर चलने लगा है तो उसके लिए क्या क्या मसले मसाइल पेश आएंगे, क्योंकि हमारे नबी के साथ जो पेश आए वो मैं आपके आगे रखूंगा। और इस दावत दीन से मुताल्लिक एक अहम बात हमारे सामने आती है, ये जो सबसे अहम बात है जिसको मैंने यहां पर नुमाया कि दावत इस्लाम में सबसे अहम बात जिस पर सबसे ज्यादा हमें जोर देना चाहिए, जो हम बिल्कुल नहीं देते, वो है ईमान बिना। मैंने आपको वाज़ेह किया कि अगर आपके दिल में खौफ ही नहीं होगा तो फिर क्या परेशानी।
गारी नहीं है। अगर इस बात को शुरू में ही समझ लिया जाए तो फिर आपकी बात सही रुख पे। अगर आपने भी कभी तबलीग करनी हो, आप सब बैठे हो, कभी आपको तबलीग करना हो या तबलीग करने का मामला हो, तो ये 4 आयात या शुरू की वही आपको इस तरफ इशारा करती है कि आपकी हर बात में आखिरत का जिक्र जरूर है, अल्लाह का खौफ होना चाहिए। जहां अल्लाह गफूर है, रहीम है, रहमान है, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीमुल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल, तो जब्बार भी है वो, शदीदुल इंतकाम भी है वो, आदिल भी है। वो किस तरह अपने गद्दारों को छोड़ देगा उसको? तो ये होना चाहिए ताकि बात आपकी सही रहे। अगर ऐसा नहीं होगा जो कि आजकल लोग चाहते हैं, तो फिर बात सही रुख पर नहीं होगी, चाहे उसमें खैर का पहलू मौजूद हो। क्योंकि आजकल के लोग इसी तर्ज पे आना चाहते हैं कि आखिरत, खौफ, डर, इसको छोड़ दो। मैं तो कहूंगा पूरे कुरान को फिर इसमें छोड़ दो। कोई ऐसी एक सूरत नहीं है, एक सूरत जिसमें अल्लाह ताला का दूसरा रुख ना दे। जहां रहीम है वहां दूसरी तरफ अल्लाह ताला रहमत के साथ साथ आदल है, रहमत करता है। जहां पर नेमतें देता है, गफूर है ना, नेमतें देता है, उसको नवाजा, उसको नवाजा, उसको नवाजा, फिर उससे हिसाब भी लिया। कोई एक सूरत ऐसी नहीं है जिसमें ये काम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम आ गया ना एक हिस्सा, मालिकी यौमिद्दीन, दूसरा हिस्सा आ गया, इधर आया तो उधर फौरन आ गया। तो ये ऐसा नहीं होता। इसी वजह से ये बात मैंने आपके आगे रखी है कि रस्सी में तनाव रहने के लिए एक सिरा अपने रब के साथ बांधो, एक सिरा अपने हाथ में रखो। अब देखो तनाव, जैसे ही आपने वहां सिरा छोड़ दिया और उस सिरे को बांध दिया दुनिया के साथ, ऐशो आराम के साथ, अपने किसी मफाद के साथ, तो ढील रहेगी। क्योंकि आपको तो ऐशो आराम कहेगा, कमा कमा, हलाल है हराम है तो बस कमा, बैंक बैलेंस भरना चाहिए, बस छोड़ दे। क्यों है, किस लिए, कोई पूछ रहा? झूठ बोलने से बना मुंह में कुछ आला? हराम खाने से कोई पेट में आग आई है? बेईमानी करने से कुछ हुआ है? अल्लाह के अहकामात तोड़ने पर कोई ऊपर से अजाब आया है? कोई जानवर को, खंजीर को इस तरह का मामला तेरे साथ पेश आया? नहीं। तो फिर अल्लाह के अहकामात को तोड़, जैसे तोड़ने का तेरा हक है। क्यों? क्योंकि इंसान तो अर्राउस्तागना अपने आप को तुगया नहीं होता। तो आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए। इसी वजह से ये बात मैंने आपके आगे तमहीद दी, तीनों मजमून रखे कि देखो इन शुरू की वहियों में भी अल्लाह ताला ने आखिरत की बात पहले की। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अर्राउस्तागना। कहां नमाज का हुक्म नहीं है, दीन का हुक्म, दीन को नाफिज करने का हुक्म। फिर दूसरी वही, नून वल कलमी व मा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। क्योंकि तुम्हें तो लोग कहेंगे जब तुम दीन पे चलोगे, या क्या जा रहे हो, कैसी अजीब बात कर रहे हो, तुम तो बड़ी हटके बातें कर रहे हो, तुम्हें तो मजनून कहेंगे, पागल कहेंगे, शायर कहेंगे। ये तुम्हारे नबी के साथ नहीं। और फिर जब तुम ये काम कर लो, जो तुम कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक दे, तो तीसरी वही, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुम इल्ला इल्ला क़लीला, जब दुनियादारों के साथ दुनिया के लिए उतना ही सिर्फ काम करो जितनी जरूरत है, बाकी खड़े हो जाओ अपने रब के। जैसे हज़रत अबू बकर का कौल, बड़ा शौक, रवायत में आता है कि उनको हलवे का बड़ा खाने का शौक था। ये रवायत में मैंने पढ़ा तो मैंने आपके आगे रख दूं। रवायत है तो इतनी रकम नहीं थी जितना उनको मिलता था जब वो खलीफा थे, तो इतनी रकम नहीं थी कि वो हलवा पका सके। तो अपनी बीवी को हमेशा कहते थे कि मेरा दिल करता मैं हलवा खाऊं, मेरा दिल करता मैं हलवा खाता। उनकी बीवी ने थोड़ा 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 पैसे जमा करने शुरू। तो एक दिन उनके आगे हलवा रखा, तो उन्होंने पूछा ये कहां से आया? मेरी तो इतनी रकम नहीं है, मुझे तो इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि मैं ये अफोर्ड कर सकूं, ये कहां से आया? तो उन्होंने कहा कि मैंने थोड़ी 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 रकम जमा करके फिर ये मैंने। वो फौरन उठे, वापस गए अपना, वो जैसे उस जमाने का, आज का जमाने का कह लो वजीर खजाना, तो उनको जाके उसी टाइम खजांची को कहा कि मेरी इतनी रकम में से इतनी रकम काट लो, क्यों? मेरा गुजारा हो रहा, इसलिए तो हलवा मिला है। देखो, दीन की तरफ कायम रहना तो उतना कमाओ जितनी जरूरत है, हद से ज्यादा तजावुज करोगे तो जवाब देना पड़ जाएगा।
तो अगर आपका धागा दुनिया के साथ बन जाए, तो ये मैंने आपके आगे इसलिए तमहीदी बातें आगे रखी है। वैसे तो हरूफ मुक़त्ताअत वो तो तमहीद मैंने आपके आगे रखनी थी, तो दूसरी तमहीद मैंने आपके आगे जो रखनी थी वो ये थी कि इब्तिदाई आयात और उन आयात, खासकर वो सूरतें जिनमें वो आयात शामिल हैं जिसमें अल्लाह ताला की क्या हिकमत है, ये अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर जानते हैं, जिनमें इब्तिदाई आयात भी हैं और बाद की आयात भी, तो उनमें जो मुश्तरका मजमून है वो मैंने आपके आगे रख दिए थे कि पहले मजमून में तो हजूर से खिताब है, उनके लिए दिलजोई, उनको तसल्ली दी जा रही है, और दूसरा मजमून जिसके अंदर ईमान बिल आखिरा को बहुत वाज़ेह है, हद से ज्यादा। अगर मिसाल के तौर पर 5 आयात हैं तो 2 आयात बिल आखिरा पर, तो ज्यादा कह लें कि 50% से अबव बिल आखिरा पे बात है। और तीसरा वो किरदार जिस पर सबसे ज्यादा अजाब बरका है, तो आज तो वही किरदार सबसे ज्यादा आम है। तो ये तीनों चीजें मैंने आपके आगे रखी हैं। तो ये थी वो तमहीदी बात जिसकी वजह से मुझे था कि मुतालिया थोड़ा लंबा हो सकता है। अब हम आते हैं अपनी आयात पर, मुतालिया शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून हरूफ मुक़त्ताअत, वल क़लम वमा यस्तुरून। ए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है कलम की और उस चीज की जो वो लिख रहे हैं। इस कलम से क्या मुराद है? इसमें बहुत से अकवाल हैं, मगर मैंने उनमें से सिर्फ 3 अकवाल बड़े बड़े आपके आगे रखूंगा। हदीस मुस्लिम 6748, कलम से क्या मुराद लिया गया। उसके अंदर एक रवायत ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा करने से कबल 50,000 साल पहले तमाम मखलूकात की तकदीर को तहरीर कर दिया। तो इस रवायत की रूह से मालूम हुआ कि तमाम शय जो है वो तख्लीक कर दी गई, उनके बारे में एक वक्त मुअय्यन में तहरीर कर दिया गया। एक और रवायत है, रेफरेंस के तौर पर दे रहा हूं, पर वो रवायत शाज हदीस है, लेकिन वो लोग ज्यादातर इसको देते हैं जरा ज़ौकी मिजाज के हों। हदीस तिरमिज़ी 2156, यानी कि एक कलम से मुराद यहां पर ये। दूसरी राय जो हमारे जदीदी ज़ौक रखने वाले हैं, जिसमें हम अमूमी लफ्ज को पेश नजर रखते हैं। मैं ये बात थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं, जदीदी दौर के तफासीर में और पुरानी दौर की तफासीर में क्या फर्क आता है। जदीदी दौर की तफासीर में अमूमी लफ्ज को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको कहा, यानी कि इजी वर्ड्स, बहुत से लफ्जों के मजमू को इकट्ठा करके इजी कर दिया जाता है। तो वो इससे मुराद ये लेते हैं कि इस कलम से मुराद हर वो कलम जो कुछ उससे लिखा जाता है, और वो इस बात को जोड़ते हैं, यानी कि दलील के तौर पर देते हैं पहली वही के साथ, क्योंकि वहां भी यही लफ्ज आया, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम से तालीम दी, यानी कि इंसानी इल्म जो बड़ा है, उसने जो तरक्की पाई है वो कलम के वसीले से ही पाई है, क्योंकि हर दौर की नस्ल में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल हुई और उसको तहरीर कर लिया गया, और वो मालूमात अगली नस्ल के लिए स्टार्टिंग पॉइंट बनी। क्योंकि अगर आप सिर्फ सीना बा सीना बात चलती तो फिर ये इल्म की रफ्तार बहुत कम हो जाती। तो असल में उस मालूमात को तहरीर कर लिया जाता, यानी कि अगर रिसर्च की गई तो यहां तक की गई और उसको तहरीर किया गया, और फिर उस रिसर्च को अगली नस्ल के हवाले किया गया, और वो उसका बना स्टार्टिंग पॉइंट और अगली नस्ल के लिए, ताकि वो गौर फिक्र करे और उसको समझे। तो हम ये कह सकते हैं कि कलम के जरिए इंसान का इल्म बना, इंसान की हिकमत, इंसान का फलसफा, और उसकी जितनी मालूमात है वो इल्म के जरिए बनी, और ये सब बातें दूसरी वही के साथ जोड़ी गई, और फिर उसकी ही कसम खा के उससे बात शुरू की गई, नून वल कलम, वो कलम जिसके जरिए ये इंसान का इल्म, फहम और फलसफा बना, उस बात को आगे रखा गया, नून वल कलम वमा यस्तुरून। और अगर हम इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ें तो फिर इसका मफहूम ये बनेगा, यानी कि गवाह है कुल इल्म इंसान, और ये कसम किस लिए खाई जा रही है, अब उसको भी सुन लें। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने परवरदिगार के फजल करम से दीवाने नहीं हैं, मजनून नहीं है। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर
किसी ने जनून का शक और शुबा वारिद कर दिया तो इसने निहायत बेअक्ली की बात की, निहायत गैर मंतकी बात की, क्योंकि इंसान की जो फिक्र और फहम है, जो भी उसने कलम के जरिए सीखा और सिखाया, वो इसकी गवाही नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बरअक्स है कि मोहम्मद तो एक निहायत मतवाजन शख्सियत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर इसी बात को दलील की शक्ल में आगे रखा, वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। तो दूसरी रिवायत से उसी को वाज़ेह किया जा रहा है कि इल्म के जरिए अगर जो भी मामला सीखा या सिखाया, इंसान का इल्म, फहम, हिकमत जो भी बड़ी, वो इस चीज की गवाही नहीं देती कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून। और इस बात की दलील क्या आई? वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, यकीनन आप अपने रब रहमत से इखलाक के आला दर्जे पर पहुंचे। जबकि सब लोग इस बात को जानते हैं, सब लोग देख रहे हैं, और फिर उनके बारे में ये शक जाहिर करना कि वो मजनून है, यानी कलम के जरिए जो इंसान ने इल्म, हिकमत, शऊर हासिल किया, उससे वो ये चीज एनालिसिस कर रहे हैं, वो हुजूर को देख रहे हैं, तो वो इखलाक के बहुत आला दर्जे पर फाइज है। जबकि तुम्हारा इल्म, हिकमत, फलसफा, फिक्र ये एक तरफ, बाकी ये तमाम चीजें इस बात की गवाही है कि वो मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के रहमत से आप मजनून नहीं। तीसरी तवील जो हमारे सल्फ में मौजूद है, जिसको हमारे ताबीन ने बयान किया, बाकी इस बात को ज्यादा दलील के साथ मौलाना इस्लाही साहब ने पेश किया, वो ये कि इससे मुराद वो कलम जिसके जरिए सहाबा कराम कुरान को तहरीर मिला। और फिर इन तीन आयात का मफहूम क्या होगा अगर मैं इस तीसरी तावील के जरिए देखूं, तो फिर इसका मफहूम ये होगा, नून वल कलमी वमा यस्तुरून से मुराद क्या है कि गवाह है कुरान। यानी कि तीसरी तावील वो कलम जिससे कुरान लिखा जाता है, तो कुरान है गवाह किस बात पर? मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मजनून नहीं। मैं थोड़ी सी यहां आपको ना ग्राउंड बनाना चाह रहा हूं, ये बार बार इस तरफ क्यों ला रहा हूं। देखें, ये बात मैंने आपको शुरू में ही कह दी थी आज के बयान कि उस दौर को इस दौर के साथ भी जोड़ ले। जब भी कोई दावत दीन का दाई दीन पर अमल करेगा, जरूरी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा आलिम हो, कोई भी शख्स इस चीज का तय करता है कि मैं आज से दीन पर अमल करूंगा, जितना हतमी हो सका कोशिश मेरी होगी 100% करने की, पर मैं अपनी मर्जी से नहीं छोड़ूंगा। हाँ, कोई मुश्किल आ गई तो फिर मैं उसके लिए अल्लाह ताला से माफी मांगूंगा, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा दीन पर चलने की हर लिहाज से। नमाज को पढ़ूंगा, हदीस बुखारी मुस्लिम शरीफ से हर चीज को पढ़कर समझकर अमल करने की पूरी तौफीक करूंगा, और जैसे मेरे नबी ने कहा था मैं वैसे करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा, चाहे मुझे दुनिया से लड़ना क्यों ना पड़े। तो उसको जो सबसे पहले चीज हमला करेगी वो ये है, यहां पर उस चीज का इशारा कि लोग उसको पागल, मजनून, बेवकूफ, कम अकल, लाशऊर, बैकवर्ड, क्योंकि अक्सर औरतें जब अबाया पहन रही थी तो उनसे मुझे ये मालूमात मिली कि उनको अक्सर घर में ये कहा जाता था कि तुम बैकवर्ड हो चुके, अब तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता, तुम तो मौलवी टाइप हो गई क्योंकि तुम बैकवर्ड हो गई। और अक्सर मर्दों को भी यही कहते हैं, तुमने दाढ़ी क्या रखी, अब तुम्हें तो मौलवी कहेंगे। यानी कि अपने आप को उन लोगों ने उनको इस तरह डिग्रेड कर दिया। तो आपको लोग शुरू में यही अल्फाजों से पुकारेंगे, अजीब बात कर रहे हैं, ऐसा तो होता ही नहीं। मैंने जैसे आपको शुरू में कहा कि लोग आपको ये बात वाज़ेह तौर पर यूं कहेंगे कि जो हमारे बावजदाद की रस्म रिवाज चली आ रही है, जो हम न्याजे दे रहे हैं, जो हम चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, जो हम ये मुख्तलिफ मामलात कर रहे हैं, तुम कहते हो हम इसको रद्द कर दें। बात तो तुम सही, बात तो तुम्हारी वही है जो मुझे दिल को लग रही है,
पर कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ले दे के मसला हल हो जाए। कहीं ना कहीं तो वो पानी का घिराव आके गिरेगा, वो कूड़ा कहीं ना कहीं आके गिरेगा। शुरू में ना गिर सका तो ये है वो शुरू के मामला। तो ये क्यों कहा गया, इसकी आगे मैं वजाहत करूंगा। क्यों हमारे नबी को मजनून कहा गया, क्यों दावत दाई को ये कहा जाता है, क्या वजह है, क्यों ये कहा गया, क्यों दूसरी वही के अंदर, यानी कि कुरान जो अभी शुरू हुआ है, अभी तो नबूवत और रिसालत का मामला शुरू हुआ है, तो दूसरी वही के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई क्यों की गई, ये मैं आगे आपको बयान करूंगा। अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि कुरान की बहुत सी सूरतें यही असलूब है, खासकर जो हरूफ मुक़त्ताआत के एक हरफ से शुरू है, उनका भी यही असूल है। नून वल कलमी वमा यस्तुरून, इसी तरह काफ वल कुरआनिल मजीद, कुरान मजीद की कसम, इसी तरह स्वाद वल कुरआनिल जिक्र, स्वाद कसम है नसीहत बड़े कुरान की, और इसी तरह यासीन वल कुरआनिल हकीम, कसम है हिकमत से भरे कुरान की, और इसी तरह नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और उसकी जो उससे लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी मुराद कुरान ही है, और मेरे भी इस बात से ही इत्तेफाक है। तो ये तीनों राय रख दी, और जिससे इत्तेफाक है वो भी मैंने आपको दिया। इस बात के साथ एक और दलील भी जोड़ लें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को कुरान ही को सबसे बड़ा गवाह बनाया गया, कुरान ही को सबसे बड़ी दलील बनाया गया, कुरान ही को सबसे बड़ा मौजज़ा बनाया गया, और फिर इसी एतबार से कुरान ही को इस पर सबसे बड़ा गवाह खड़ा किया गया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मजनून नहीं। बार बार ये जितनी मैंने आयत पढ़ी ये गवाही दे रही है किस बात की, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मजनून नहीं। और मेरी राय भी इसी के साथ है। यहां एक और बात जान लें कि इस सूरत की जो पहली 7 आयत है, असल में ये अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिलजोई थी, एक तसल्ली थी, एक जिस तरह आप कहते हैं ना थपकी दी जानी, कोई बात तसल्ली दी जा रही, ये तसल्ली का मजमून। यूं लगता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी चीज पर मलामत थी, किसी चीज का गम था, कोई सदमा था जो आपको तंग कर रहा था, उस पर ये आयत नाज़िल साथ आया। ए नबी, देखो अल्फाज को देखो, अब अरबी को मैं थोड़ा सा पीछे करता हूं। नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम है उस कलम की जिससे कुरान लिखा जाता है, यानी कि कुरान गवाह है, ए नबी आप मजनून नहीं। यानी कि ये आयत बता रही है कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गम था किस चीज का, कि आपको कोई सदमा था जिस पर ये आयत नाज़िल हुई, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई की गई और आपको तसल्ली दी जा रही है, क्योंकि इसके बाद की क्योंकि इसी बात की दलील कुरान में मौजूद है। वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून, और ये लोग जो कहते हैं कि ए वो शख्स जिस पर ये जिक्र यानी कि कुरान नाजिल उतारा गया, तुम यकीनी तौर पर मजनून। यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़कर सुनाते थे, वो लोग ये कहते थे कि ये जो शख्स जिस पर कुरान उतारा गया है, या ये जो शख्स कहता है मुझ पर कुरान उतरा है, ये यकीनन मजनून है। लगता है कि आपका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, आपका ज़हनी अदम तवाज़ुन अब सही नहीं रहा, या फिर आपको कोई आसिब आ गया है। और फिर इसी बात की इसी सूरत के यानी कि सूरह हिजर के आखिर में भी अल्फाज आए, वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून, यकीनन हम जानते हैं, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यकीनन हम जानते हैं कि जो ये बातें लोग कर रहे हैं इससे आपका दिल तंग है, दिल पिसता है, आप अंदर से पिस जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है जब आप दीन की दावत के लिए, हक बात के लिए खड़े हों, तो कभी कभार ऐसा होता है कि लोग हूटिंग करते हैं, बात को तमस्खुर में उड़ा देते, बात को वैसे नहीं लेते सीरियस जैसे लेना चाहिए, तो इंसान का दिल पिचता है। यहां पर भी वही बात है, उस बहुत को थोड़ा सा महसूस करो कि नबी वलक़द नअलमु अन्नका युज़ीक़ु, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन हम जानते हैं, हम इस चीज का इल्म रखते हैं
हमें इस बात का इल्म है कि ये जो बातें आपको करते हैं ना, ये गलत मंद बातें जो आपको करते हैं, आपको मजनून कह दिया, शायर कह दिया, आपको कज़्ज़ाब कह दिया, ये भी लफ्ज बोला गया, इससे आपका दिल पिछता है। जैसे वो आपकी अबू लहब की बीवी, आपकी सगी चची आपको क्या कहती थी? आपको मुजम्मम कह के पुकारती, दिल पिछता था। मगर अल्लाह ताला के नबी आगे से क्या खूबसूरत अल्फाज बोलते। सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह ये क्या बोल रही हैं आपको? तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे से फरमाते थे मुस्कुरा कर, ये मुझे तो नहीं कह रही, मैं तो मोहम्मद हूं, ये तो मुजम्मम को कहती, मैं मुजम्मम हूं। मगर ए नबी हम जानते हैं कि आपका दिल पिछता है। दिल पिछेगा कब? दिल तब पिछता है जब अपना बोलता है, जब अपना ही अपने आप को रद्द कर देता है, फिर दिल पिछता है, फिर आवाज निकलती है। जैसे तारिक जमील साहब ने कहा था कि मुझे घर से निकाल दिया, अगर मैं ना निकला होता तो मैं तबलीग में कैसे आता? तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जानते हैं कि यहां पर मजनून क्यों आया। असल में यहां पर आपकी दिलजोई की जा रही, क्यों? क्योंकि कोई गम था, और इस बात की दलील मैंने आपके आगे रख दी। और अगर आप यही सूरतुल हिज्र की दोनों आयात आगे रखें तो ये 7 आयात ऑटोमेटिकली वाज़ेह हो जाएंगी, वाज़ेह हो जाएंगी, खुल जाएंगी। असल में ये 2 आयात इन 7 आयात का मफहूम बन जाएगा। इस ज़िमन में सबसे पहले 2 बातें नोट करें। किस ज़िमन में? मजनून के बारे में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले मजनून कहा गया। इस ज़िमन में 2 बातें नोट करें। पहली बात, पहले 3 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़बानी कलामी इस्तिज़ा हमला हो, वो भी सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, बाद में आपके जानसारों के साथ शदीद तरीन पहाड़ टूटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने नहीं, क्यों? क्योंकि आपके पीछे अबू तालिब की पुष्ट पनाह, कोई हाथ में, हाँ कुछ वाकयात हुए, जैसे अबू जहल ने गर्दन में फंदा, चादर का फंदा डाल के खींचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त नमाज पढ़ रहे थे तो ओजरी लाके, ऊंट की लाके आप पे डाल दी गई, तो ये मामला भी हुए, मगर बस इतने। मगर जो आपके जान निसार थे, यानी कि सहाबा कराम, उनके साथ तो शदीद तरीन पहाड़ टूटे होते, वो भी मैं आपको आगे बयान करता हूँ। जब उनको ये मालूम हुआ कि जब जबानी कलामी कोई मामला हमारे नहीं पेश आ रहे और ये तमाम चीजें गैर मुअस्सर होती चली जा रही हैं और ये दावत और फैलती जा रही है, यहाँ तक कि हमारे नौजवान, यहाँ तक कि हमारे गुलाम इस दायरे में शामिल होते जा रहे हैं, तब उन्होंने फिजिकल परसिक्यूशन यानी कि जिस्मानी तशद्दुद शुरू किया, जबकि उससे पहले वर्बल परसिक्यूशन, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। मेरे मुताले के मुताबिक सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही कहा गया, क्या? मजनून, पहला लफ्ज, फिर शायर, फिर साहिर, फिर इससे भी निचला लफ्ज मुजम्मम, और फिर कज़्ज़ाब भी कहा गया। ये शदीद तरीन अल्फाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुए। ये था पहला हमला वर्ज ज़बानी कलाम। जो बात मैं बताना चाह रहा हूं वो ये कि सबसे पहला हल्का हमला, या आप ये कह लें पहला जो मामला पेश आता है जो आप सबके साथ आया, वो यही लफ्ज था, मजनून। और असल में इस मजनून के 2 मायने हैं। एक वो जिससे दिमागी तवाजुन ना रहा, दूसरा जिस पर आसेब आ गया हो या जिन आ गया हो। दोनों चीजें ऐसे जो इंसान के इख्तियार में ना हो, जो इंसान के इख्तियार से बाहर हो। जैसे आप कहते हैं किसी भी शख्स पे आसेब आ जाए तो आप ये कहते हैं कि अच्छा भला आदमी था, अचानक इसको लगता है कोई आसेब आ गया है, कोई ज़हनी तवाजुन उसका खराब हो गया, जबकि उसकी नीयत खराब नहीं है, जबकि उसका कोई इरादा भी ऐसा नहीं था कि इसके साथ कोई गलत हो, उसकी नीयत ठीक है। तो आप उसके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि यार इसका कसूर नहीं है, लगता है इसका ज़हनी तवाजुन बिगड़। जैसे कि कहा जाता है कि अच्छा भला आदमी था, कोई जिस्मानी मर्ज आ गया, कह सकते हैं। तो इसी तरह आप ये भी कहते हैं कि दिमागी मर्ज हो गया, तो इसी लिहाज पर मजनून कहा गया। अगर इन अल्फाज को दूसरे रुख से देखें तो ये फौरी तौर का रद्द अमल भी मिलता है। रवायत में ये भी आता है कि जैसे कि ये हमदर्दी के अंदाज में भी कहा जाता है, जैसे कि यूं कहा गया कि अच्छा भला आदमी था, ना मालूम क्या हो गया है। हाँ, कुछ अरसे से पता लगा था ये तन्हाई पसंद थे, कुछ देर से हमें पता लगा था ये गारे हीरा में जाकर बैठे रहते थे और कई दिन बैठते थे, ना मालूम क्या हो गया है।
शायद इन्होंने जिन को देख लिया है या इनके ऊपर जिन आ गया है जिसको ये फरिश्ता जिब्राइल समझ रहे हैं। तो ये हमदर्दी के अल्फाज में भी बोला जाता है। अगर कोई तंजिया अल्फाज में बोले कि ये मजनून हो गया, ये पागल हो गया, तो दूसरे अल्फाज में हमदर्दी के अल्फाज में भी बोला जा सकता है कि शायद हो सकता है कि इनके ऊपर आसेब आ गया, जबकि ये समझा जा रहा था कि ये फरिश्ते को देखा है। तो ये तमाम आरा अपने आगे रखें। अगर आप अपने आप को उन हालात में रखेंगे तो ये बात आपके आगे मजीद आसानी से वाज़ह हो जाएगी और ये सारे इत्मीनानात हमारे सामने आसानी से खुल जाएंगे। जैसे हम जदीदी अल्फाज में, अगर आप थोड़ा सा इस तरफ आए कि जदीदी अल्फाज में हम ये बोलते हैं जैसे कि किसी को फिक्स पड़ जाना, क्योंकि अगर आप देखें तो रवायत में भी ये बात हमें इशारतन मिल जाती है वज़ाहत के साथ कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी तो शदीद सर्दी होती थी तो आपके पसीने छूट जाते थे। आपको कभी कभार ऐसा भी महसूस होता था कि आपके ऊपर शदीद बोझ लायक हो जाता था। तो वही जब नाजिल होती थी तो फिजिकली मामलात आपके ऊपर कुछ जाहिर हो जाते। अगर हम तारीखी एतबार से देखें तो असल में ये नफ्सियाती मसले दुनिया में पहले से ही चले आ रहे हैं और ये बात आज भी इसी अंदाज में कही जा रही है कि ये तमस्खुर के अंदाज में भी कही जा सकती है, हमदर्दी के अंदाज में भी कही जा सकती है और वर्बल परसिक्यूशन के अंदाज में भी कही जाती है। और अगर आप वर्बल परसिक्यूशन के मुतालिक अगर उसके जरिए अगर आप देखें, क्योंकि बाद में कर रहा हूं परसिक्यूशन से रिलेटेड, तो किसी भी नए दावत दीन के दाई को इस तरह के अल्फाज या तमस्खुर से तो उसको बदजन कर दिया जाए तो ये दावत को रोकने का सबसे आसान हरबा है, आसान नुस्खा है, यानी कि दावत को शुरू में ही खत्म कर देना। और इसका सबसे आसान तरीका क्या है? दावत दीन के जो दाई है उसका करैक्टर असैसिनेशन का, यानी कि उसकी कुव्वत इरादी को कुचल दिया जाए। और ये बात हमें मौजूद है कुरान मजीद के अंदर भी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत इरादी को कुचलने का जिक्र सूरह नून के अंदर वजाहत के साथ आया है और इंशाअल्लाह ताला हम इसको अगले दर्स में पढ़ेंगे। फिल वक्त मैं यहाँ वाज़िया कर दूं, वहीं यकादुल लज़ीना कफरू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून। जिन लोगों ने कुफर अपना लिया जब वो नसीहत की ये बात सुनते थे तो ऐसा लगता था कि अपनी तेज तेज आंखों से तुम्हें डगमगा देंगे और वो कहते थे कि ये शख्स तो दीवाना है। तो ये भी उनकी कोशिश होती थी कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर इस दरख्त की जड़ ही काट दी जाए, यानी कि इस दावत दीन के दाई को ही बदजन कर दिया जाए, तो फिर किसी भी मामले की आगे हमें एक्टिविटी करने की जरूरत ही नहीं। और किसी भी दावत के खिलाफ सबसे पहला और मकबूल हमला भी यही होता है कि, और ये बात वैसे भी आप तारीखी एतबार से देखें तो करैक्टर असैसिनेशन सबसे आसान हल है किसी भी दाई को हराने की, क्योंकि दावत ही जब वो दाई खत्म हो गया तो फिर दावत ही खत्म हो गई। जैसे हम कहते हैं, और इसको तमस्खुर में भी उड़ा देना, जैसे हम कहते हैं ये चुटकियों में उड़ा देना, जैसे कि कुरान में भी आया सूरह सौद में वो ये चाहते हैं कि अपनी मुंह की फूंकों से इसको बुझा दिया। तो असल में सबसे पहला हमला ये होता है और माकूल हमला भी यही है, क्योंकि सारी दावत उस दाई के ऊपर खड़ी है और अगर उसी को बदजन कर दिया जाए, उसको बददिल कर दिया जाए तो सारा मामला खत्म, वो सारी बिल्डिंग, वो सारा दरख्त आ गिरेगा। हाँ, अगर वो दाई उस हमले से बच जाए, उस मरहले से गुजर जाए, उस मामले को झेल ले और उसकी अजमत पर वो कायम खड़ा रहे, अगर वो इस इस्तकामत का मुजाहिरा करे तो फिर क्या होगा? फिर सेकंड स्टेज वो फिजिकल परसिक्यूशन, कि अब इनका रास्ता रोको, इनको मारो, इनको भूखा रखो, इनको फाके रखो, इनको जंजीरों में जकड़ दो, जैसे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ उनके चचा ने किया कि उनको चटाई में लपेटा और नीचे से धूनी दी, उससे उनका दम घुटा। इसी तरह हजरत मुसाब बिन उमैर, उनको बिल्कुल मादज़ाब बराना करके घर से निकाल दिया। इसी तरह हजरत साद बिन वकास, उनको मेंटली टॉर्चर किया गया, उनकी मां ने मरने का व्रत रख लिया। तो ये सारी बात आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो मजनून का लफ्ज बोला गया, अगर आप तीनों इत्मीनानात अपने आगे रख लें
कि उसकी कुव्वत इरादी को कुचल दिया जाए, या फिर ये लफ्ज हमदर्दी के तौर पर बोला गया, या फिर लोगों का फौरी रद्द अमल था जिसको पासिंग मार्क्स भी कहा जा सकता है। तो ये तमाम एहतमालात अपने आगे रखें, इस लिहाज से इसको आप समझ लें कि किसी भी एंगल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला है। किसी ने हमदर्दी के अंदाज में बोल दिया, किसी ने तमस्खुर के अंदाज में बोल दिया, वो जो कि मैंने आपके आगे दलील रखी, और किसी ने वैसे ही पासिंग रिमार्क्स दे दिए, फौरन रिमार्क्स, किसी ने सुना फौरन कह दिया, वो भी मैंने आपके आगे रवायत की बात आगे रखी। तो ये तमाम मामलात असल में आसान हरबा बनते हैं उसको आगाज में ही दावत को खत्म करने में। लेकिन इस पर अब जो मैं अपने मौक़िफ़ पे आना चाह रहा हूँ, लेकिन इस पर अल्लाह ताला की तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई हुई और कहा गया मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने परवरदिगार के फजल से दीवाने नहीं हैं, मजनून नहीं है। जो तमस्खुर कर रहा है या ये जो कह रहा है, जो इसकी वजह से आपको फील हो रहा है कि आपको महसूस हो रहा है कि मैं गमगीन हूँ, जिसकी दलील आगे रखी, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें खिताब हुजूर से ही है। हाँ, जबकि कुछ हजरात का इसमें नफी है, वो कहते हैं कि इसमें खिताब हुजूर से नहीं उन लोगों से है, लेकिन क्योंकि, और इस बात की उन्होंने आगे दलील ये रखी कि हुजूर को अपने बारे में कोई शक शुबा नहीं था कि वो मजनून हो सकते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक हुजूर से भी खिताब है और उन लोगों से भी, खासकर मुशरिकीन के साथ भी खिताब है, और उनको ये कहा जा रहा है कि अक्ल के नाखुन लो, होश के नाखुन लो, सोचो तो सही किसके बारे में ये बात कर रहे हो। क्या तुम्हारा इल्म, तुम्हारा फहम, तुम्हारी हिकमत इस बात को मानने को तैयार है कि ये मजनून है? जबकि इनका इखलाक तो देखो, और लेकिन असल में हुजूर की यहाँ पर दिलजोई ही की गई, मान बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। और इसी दिलजोई को बड़ी खूबसूरत अल्फाज के साथ एक और जगह पर वाज़िह किया गया सूरह अल-अनआम में, फ़इन्ना लहुम ला युकज़्ज़िबूनका वलाकिन ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दरअसल तुम्हें नहीं झुठला रहे, बल्कि ये जालिम अल्लाह की आयात को झुठला रहे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको किसने झूठा कहा? क्या अबू जहल ने आपको झूठा कहा? नहीं। तो आप क्यों गमगीन होते हैं? तो असल में ये झुठला रहे हैं हमारी ही आयात को। तो यहाँ पर एक बड़ी अहम बात वाज़िह हो रही है कि नबी वो बशरी एहसासात से खाली नहीं होते। सदमा उनको भी होता है, खुशी उनको भी होती है, तकलीफ भी उनको होती है। अगर किसी के जिस्म पे तलवार लगे तो खून का फुहारा जैसे वहां फूटता है, ऐसे नबी के जिस्म से भी खून का फुहारा फूटा था, खासकर ग़ज़वा ओहद में जब वो आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए थे। इसी तरह सदमा आपको भी लगता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहीम का इंतकाल हुआ तो नज़ा का आलम था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ गए, तो लोग हैरान हो गए कि ए नबी आपकी आंखों से आंसू। तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि ये तो अल्लाह ताला की रहमत है, जिसके दिल में ये रहमत नहीं वो इंसान नहीं, उसका दिल तो फिर फतल का। तो अलबत्ता उस वक्त हमें ये कहना क्या चाहिए कि अल्लाह हम तेरी रजा पर राजी है, जो तेरा फैसला है हम उस पर राजी हैं, कोई शक और शिकायत के अल्फाज नहीं करने चाहिए। तो नबी में ये सारे मेलानात और एहसासात, ये तमाम चीजें मौजूद होती हैं। जैसे कि शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा ने, यहाँ पर उस मिसाल को भी रख लें कि आपको तसल्ली दी, आपकी हिम्मत भराई और आपको कहा कि अल्लाह ताला आपको जाया नहीं करेंगे, आप तो गरीबों की मदद करते हैं, उनकी सरपरस्ती फरमाते हैं, अल्लाह आपको जाया नहीं करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की दिलजोई फरमा रहे हैं, मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, कि आप गमगीन ना हो, किसी के कहने से आप मजनून नहीं होंगे, और ना ही कोई शख्स जो शऊर रखता होगा वो आपको मजनून नहीं कहेगा। तो यहाँ पर ये बात वाज़िह हो गई कि मजनून क्यों कहा गया, क्योंकि किसी भी दावत को रोकने का सबसे आसान हरबा यही है कि उसके करैक्टर असैसिनेशन कर दीजिए, उसको बददिल कर दीजिए, और अगर वो रुक गया या उससे बच के निकल गया या उस मरले से कामयाब होकर निकल गया तो फिर फिजिकल परसिक्यूशन। तो ये तमाम बातें इसलिए हुई क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जैसे कहा कि नबी बशरी एहसासात से खाली नहीं थे, इसलिए आपको सदमा था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये दिलजोई के अल्फाज आए, मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्नका लअजरन गैर ममनून।
اور یقین جانو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہے۔ یہ اصل میں دلجوئی کا دوسرا پہلو، وہ عظیم مشن جو آپ کے حوالے کیا گیا، اس کے لیے آپ کو جتنی بھی ذہنی کوف، جسمانی کوف، جو بھی جتنی بھی کوف ہے، آپ کو جتنی بھی برداشت کرنی پڑے آپ برداشت کریں، کیونکہ آپ کے لیے وہ اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں۔ یہ اصل میں دلجوئی کا جو دوسرا پہلو ہے، یہ ہمارے آج کے دور میں بھی اس کو رکھنا ہے کہ جہاں پر اس طرف اللہ تعالی ہمدردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، دلجوئی کر رہے ہیں کہ اس دائی کے لیے جس کو شروع میں ہی یہ باتیں کہی گئی، تو دوسری طرف اس کو پھر اپنا اجر بھی دیکھنا چاہیے، وہی دھاگے کا سرا جو باندھا ہے اپنے رب کے ساتھ، کہ اگر مجھے دنیا میں یہ پریشانیاں مل رہی ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ میں اپنے رب کے ہاں جب اجر پاؤں گا تو تسلی سے پاؤں گا۔ ابھی تو مجھے کئی معاملات ہیں، گھر کے، بچوں کے، فلاں یہ وہ، کئی پریشانیاں مجھے کھائی جاتی ہیں، اگر میں ان کے حقوق پورے کروں گا، کون سے؟ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیے، تو میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں۔ ویسے تو انسان کی قبر ہی اس کی سب سے پہلی منزل ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخوں کے جہنم کے گھر میں سے ایک گھر ہے، تو مرتے ہی سارا کچھ کھل جائے گا، تو وہ سلسلہ جو کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اور اسی بات کی دلیل سورۃ الضحیٰ میں بھی آئی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آگے آنے والے حالات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر ہوں گے۔ اگر ابھی صبر کرو گے آگے اس کا پھل اور اچھا ملے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور بہتر کی طرف لے کے جائے گا، بلند سے بلند مقام کے آپ حامل ہوں گے۔ یہاں لَقَدْ اجرن کا مفہوم ایک اور بھی سمجھ لیں، جس پر احسان نہ دھرا جائے، یعنی کہ ایسا معاملہ جس پر کوئی احسان نہ ہو، لَقَدْ اجرن۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی احسان بھی نہیں دھرا جائے گا، وہ اجر آپ کو ملے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اس آیت میں بھی دلجوئی کا پہلو، 3 آیات ہو گئی، تینوں میں دلجوئی کا پہلو، ایک مجنون کا، دوسرا اجر کا، اور اب اخلاق کا۔ یہ اب دلیلی پہلو ہے ان لوگوں کے لیے کہ کیا تم آنکھوں کے اندھے ہو، تم دیکھ نہیں رہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ تم بات کر رہے ہو اس شخص کی عظمت کو تو دیکھو، اس کا کوئی دماغی عارضہ تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے؟ تم ان کے کردار کو دیکھو، ان کے اخلاق کو دیکھو، ان کی سیرت کو دیکھو، کتنی عظیم سیرت کے مالک ہیں، کتنے اعلیٰ کردار کے مالک ہیں۔ یہاں پر لفظ اعلیٰ بھی آیا ہے، یعنی کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کبھی کبھار اچھا کام کر دیتا ہے، یعنی کہ جیسے کہ بوڑھے سے بوڑھے شخص سے بھی کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے، لیکن ایک وہ شخص ہوتا ہے جس پر تمکن ہو، کیا کہ یہ برا کام تو کبھی نہیں کرے گا، یہ ہمیشہ اچھا کام ہے، یعنی کہ اس پر یقین ہو، تمکن ہو، شدھ نہیں ہو کہ یہ اچھا کام کرے گا ہی کرے گا، تو وہ کیفیت، اعلیٰ کیفیت، وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیقین اور امین کا خطاب تو تم لوگوں نے ہی تو ان کو دیا ہے۔ تو روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، یہ بات تب جب ابھی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ وہ آ رہا ہے سچا انسان، وہ آ رہا ہے امانت دار۔ تو اس خلق عظیم کے لفظ کو ایک اور جگہ بھی دلیلاً واضح کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حدیث مسلم 1739، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ مجسمہ قرآن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھا کرتے تھے، محبت کی باتیں، مذاق یا اس طرح کے معاملات چلتے تھے، مگر جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی تو وہ ہم سے اس طرح ہو جاتے تھے، اس طرح چلے جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہیں۔ فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ، چنانچہ تم بھی دیکھ لو گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ یہ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں وہ چاروں انداز اپنے آگے رکھ لے، یعنی کہ وہ تمخر کا،
इस्तजात का, हमदर्दी का, तंजिया का, या वो फिर वो फिक्रा या चलते चलते कह दिया, वो चारों इत्तमिलानात अपने आगे रख लें। तो ये जो कुछ आपको कह रही हैं किसी भी अंदाज में, तो अन करीब देख लेंगे, ज्यादा दूर की बात नहीं। बिअय्यिकुमुल मफ्तून, तुम में से कौन दीवानगी में मुब्तला था। अन करीब हालात और वाकयात सामने आ जाएंगे, आप भी देख लेंगे और ये भी देख लेंगे। ये लफ्ज मफ्तून मजनून के लफ्ज से ही निकला है, यानी वो शख्स जो फितना फैला रहा हो या फितने पर पड़ गया हो, या फिर जिससे किसी का दिमागी मर्ज लायक हो गया हो। बिअय्यिकुमुल मफ्तून, यानी कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी देख लेंगे और ये भी लोग देख लेंगे कि कौन दीवानगी में मुब्तला है। पता चल जाएगा कौन, किसकी अकल मारी गई, किसकी अकल पे पर्दा है। बात अनकरीब खुल जाएगी। तो बस थोड़े दिनों की बात है, अनकरीब ये पर्दे हट जाएंगे, तब सब लोगों को बचश्मे सर देख लेंगे। यानी कि इस वक्त तो ये सारे लोग बचश्मे अकल देखने को तैयार नहीं। हकीकत यहाँ पर भी वही वाज़िया हो रही है कि फिल वक्त इंसान को ये चीज वाज़िया नहीं हो रही कि इस किताब से हमें क्या रहनुमाई मिल सकती है, या क्या रहनुमाई हो सकती है, या क्या रहनुमाई हम हासिल कर सकते हैं। वो इस चीज को रद्द कर रहे हैं और अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त दीन में और दुनिया में दे। यहां पर भी वही बात आ रही है कि अनकरीब ये उस शख्स के लिए जो दावत को फैलाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर तो फिल वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई की जा रही है कि फिल वक्त ये बचश्मे अकल देखने को तैयार नहीं, मगर तब बचश्मे सर ये देख लेंगे, अपनी आंखों से देख लेंगे कि सच क्या है। क्योंकि ये बात वाज़िया है कि जब इंसान मरता है वो तमाम चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी। आपको पता लग जाएगा कि असल में वो तमाम अहकामात जो बार बार कुरान मजीद में आ रहे थे, बार बार, क्योंकि कुरान मजीद का असलूब है एक ही बात बार बार दोहराई जाती है। अगर अहम बात है तो कम से कम 2 दफा 3 दफा जरूर आई। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये शुरू की आयत, अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, अब वो आखिरी पारे की आयत सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला। तो तमाम चीजें बार बार उसी तरह आ रही है, वजाहत के साथ समझाने के लिए, समझ जाओ। तो इस वक्त ये देखना नहीं चाह रहे, अकल से भी और आंखों से, और उस वक्त तो ये अपनी आंखों से देख ले तो ये बात वाज़िया हो जाएगी। तो अनकरीब ये हकीकत वाज़िया हो जाएगी। इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। यकीनन, यानी यहाँ पर इशारा, अब क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सूरत उन आयात की तरफ जा रही है जो बाद के दौर की, तो अब यहाँ पर इशारा उन लोगों की तरफ हो रहा है कि उन मुनाफिकीन की तरफ, वो लोग जो आज के दौर में भी पर्दे में हैं, उनकी तरफ भी यही इशारा है कि यकीनन आपका परवरदिगार बहुत खूब जानता है कौन सीधे रास्ते से भटक गया है और कौन सीधे रास्ते पर, वो खूब जानता है। तुम्हारा परवरदिगार जानता है कौन हदायत याफ्ता है या हदायत पर है और कौन है जो उससे दूर है। अगर आप देखें तो ये जो 7वीं आयत है, ये पहली 6 आयत की कंक्लूजन है। जैसे कि ये हकीकत बाद में वाज़िया हो जाएगी। जब ये बात अल्लाह के इल्म में पहले से ही है, ये बात तो हर इंसान जानता है कि अल्लाह ताला के इल्म में ये बात पहले से ही मौजूद है, तो इसी वजह से तो दिलजोई की जा रही है कि ऐ नबी मैं जानते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अगर जानता है तो इसी वजह से तो दिलजोई कर रहे हैं कि मैं जानता हूं, तो अनकरीब सब पता लग जाएगा। यही बात आज के दौर के भी इंसान के लिए है कि जो बात अल्लाह ताला के इल्म में है, जब तू ये बात जानता है कि अल्लाह ताला जो करता है अच्छे के लिए करता है, तो फिर परेशानी किस बात? ऐ नबी आपका मामला अपने रब के साथ। इसी बात को सूरह मुज़म्मिल में भी वाज़िया किया गया, वज़्कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला, अपने परवरदिगार का नाम का जिक्र करो और सबसे अलग होकर पूरे के पूरे अपने रब के होकर रहो। यानी आपको अपने रब के साथ जुड़ना चाहिए। ये बात आज के लोगों के लिए भी है, तो इसको आप इकट्ठा कर लें, बार बार मैं रिपीट नहीं करूँ। तो लिहाजा आपका ख्याल ना करें कि कौन क्या कह रहा है, कोई भला कह रहा है या बुरा कह रहा है, आप सिरे से उसकी बात का तसव्वुर ना करें, क्योंकि आपका रब जानता है आप उसके बरगुजीदा बंदे।
और वही काफी है आपके लिए। उसने आपको चुना है इस अजीम मिशन के लिए। तो क्या डर अगर सारी खुदाई आपसे नाराज हो जाए, तो काफी है एक खुदा भी मेरे। यही बात हमारे लिए भी है कि अगर हम अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल कर रहे हैं, तो फिर चाहे लोगों के लिए हम कितने ही बुरे क्यों ना हो जाए, तो सारी दुनिया भी आपको मजनून कहे तो भी आप मजनून नहीं हो जाते। इस बात को अल्लाह ताला जानता है और उसका मामला वो जानता है, और आपको अपना सारा मामला उसके साथ ही। यही बात हमारे लिए है कि हमें भी अपना मामला अपने रब के साथ रखना चाहिए, उसी के साथ जुड़ा होना चाहिए। लोग हमें क्या कहते हैं, किस तरह पुकारते हैं, किस तरह, अगर औरत है तो उसको किस किस अल्फाजों से, क्योंकि मर्द को तो इतना खास इस मामले में नहीं किया जाता, औरत जात को थोड़ा ज्यादा किया जाता है। तो वो ये अगर सोचती है कि मैं अगर अल्लाह के अहकामात के मुताबिक पर्दे में हूं या पर्दा कर रही हूं, तो दुनिया चाहे मुझे जो मर्जी कहे कि मैं इस महफिल के लिए काबिल हूं, नहीं हूं, बैकवर्ड हूं, मजनून हूं, तो मेरा मामला अपने रब के साथ होना चाहिए। क्योंकि आजकल का दौर, जैसे कि हमेशा मेरा मौजू यही रहा है कि आजकल का दौर फितने का दौर। फितना किसी भी शक्ल में आ सकता है, इल्मी फितने की शक्ल में भी आ सकता है, बेहयाई के फितने की शक्ल में भी असल में हमें उससे बचना चाहिए, उसके पीछे उसकी डिटेल नहीं खोलनी चाहिए। तो यहां पर भी वही बात आ रही है कि जबकि तुम ये जानते हो, सब इंसान जानते हैं कि अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है, तो फिर जब तुम ये जानते हो, तो फिर अपना मामला अपने रब के साथ रखो, उसके साथ जोड़ी रखो। तो असल में यहां पर हमें भी अपना ज़हन और अपना कल्बी रिश्ता जोड़ना चाहिए अपने रब के साथ। आपका हिसाब अपने रब के साथ बिल्कुल साफ होना चाहिए, ताकि दिल गवाही दे कि मैं बिल्कुल ठीक, ये जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल ठीक। तो फिर किसी भी शख्स का असर इंसान को फिर कबूल नहीं करना चाहिए। तो यहां पर उसके लिए अमली तौर पर कहा जा रहा है। अगर उसको पहले इल्फाजी तौर पर समझाया जा रहा था, अब ये दलीलन अमली तौर पर कहा जाए कि तुम ये करो। क्या कि तुम लोगों की बातों को सुनो ही ना, सिरे से ही ना सुनो। कि अगर तुम्हें कोई मजनून कह रहा है या दूसरे अल्फाज में कि तुम्हें दीन से हटाने की कोशिश कर रहा है, तो इंसान फिर मुस्तगनी हो जाए लोगों की बातों से और जुड़ जाए अपने रब के साथ। असल में यहां पर बहुत अहम बात की तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूं, ताकि ये मेरा मौजू कंप्लीट हो जाए। इशारतन बात कि मेरी कोशिश कामयाब हो रही है या नहीं, मुझे नतीजे की तरफ नहीं देखना, मुझे सिर्फ देखना है अपने रब की, कि मैं ये काम अपने रब के लिए कर रहा हूं। मुझे ये बिल्कुल नहीं देखना कि लोग क्या कहेंगे, लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे, लोग सुन रहे हैं कि नहीं। मैं बात हक की कर रहा हूं, मुझे अपने रब की तरफ देखना है। ये बात मुझे हिंदू फलसफे में से एक बात बड़ी वाज़ेह पता लगी, क्योंकि बात चीजें ऐसी होती हैं जो हिकमत से भरी हैं और इंसान को उनको ले लेना चाहिए, और हमें हुक्म भी इसी बात का है कि हिकमत की बात जहां से मिले और उसको ले लो। तो हिंदू फलसफे में 3 कैटेगरियां इंसान की करार पड़ी। नंबर एक तो वो लोग जो इल्म के साथ मुनासबत रखते हैं, यानी कि इल्म के जरिए अपने रब तक पहुंचते हैं, उनको कहा जाता है जनान मार्ग। दूसरे वो लोग जो इबादत के जरिए उस तक पहुंचते हैं, उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग। जो तीसरी लोग हैं जिसकी तरफ मैं इशारा यहां पर लाना चाह रहा हूं और जिसको मैं यहां जोड़ रहा हूं, और यहां मैं उनको अपने साथ इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि हर इंसान मुख्तलिफ मिजाज का होता है, और उसके लिए भी ये बात जान लें कि जन्नत के भी अगर 8 दरवाजे हैं, तो उन मुख्तलिफ दरवाजों में से मुख्तलिफ मिजाज के लोगों को बुलाया जाएगा। तो इस बात को मैं जोड़ रहा हूं। तीसरे वो लोग जिनकी मुनासबत होती है अमल के साथ, भाग दौड़ के साथ, जैसे हजरत उमर का मिजाज की तरह, भाग दौड़ का, अमल का, फैसलों का, इसको कहा जाता है कर्मा मार्ग, यानी कि कर्मा मार लो। और इस कर्मा मार लो की एक शर्त होती है, वो ये कि इंसान को नतीजे से कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ जो भी करे अपने खुदा के लिए। तो हर इंसान तभी बशरी वाला है, तो कुछ ना कुछ तो मिलानात होते हैं, लेकिन ज्यादा इंसान को मुतासिर नहीं होना चाहिए। यानी कि जरा सी कामयाबी आ गई तो फूले समाये नहीं बैठ रहे,
और अगर जरा सी नाकामी हो गई तो कमर टूट गई, मायूसी हो गई, बददिली हो गई। जबकि हम पर ये दोनों कैफियत आती हैं, लेकिन जिनका मिजाज होगा कर्मा माफ का, अमल के साथ, उनके लिए ये शर्त लाजिम है क्या, कि वो अपने नतीजे की तरफ मत दे। यानी कि अगर कामयाबी आ गई तो ये नहीं कि फूले नहीं समाए, अपना हर मामला अपने रब के साथ है। मुझे यहाँ आयत पर ये सारी बातें नजर आ रही थी जुड़ती हुई, तो इसलिए ये बातें मैंने आपके आगे तमहीदी शक्ल में रखी कि इंसान का ज़हनी और कल्बी सारा मामला अपने रब के साथ होना चाहिए। कोई ख्याल ना रखे कि कोई क्या कहता है, कोई नतीजा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई बात मान रहा है या नहीं मान रहा, कोई बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा, कि जितनी भी उसकी कोशिश हो सके सिर्फ और सिर्फ अपने फर्ज को अदा करे और अपने रब के साथ जुड़ा रहे। जो जिम्मेदारी उसको अदा करनी है वो उसको मुकम्मल तौर पर अदा करे और फिर अपना मामला अल्लाह के साथ रखे, अपना कल्बी रिश्ता अल्लाह के साथ जोड़ी रखे, और जो अहकामात अल्लाह ताला ने दिए हैं सुनी सुनाई बात पे अमल नहीं, अमल की तौर पर खुद पढ़कर उस पर अमल करे, और जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जैसे हुक्म दिया है अल्लाह ने, वैसे ही अमल। तो ये वो असल चीज होगी जो इंसान को इस रास्ते पर चलने में आसानी हो। इन्ना रब्बका हुवा आलम मन ज़ल्ला अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन, यकीनन आपका परवरदिगार उसे भी खूब जानता है जो रास्ते से भटक गया है, और उसे भी खूब जानता है जो सीधे रास्ते पर है। असल में इस बात में हदायत भी है और एक रहनुमाई भी, कि उन चीजों से मुतासिर होने की जरूरत नहीं, आपका मामला अपने रब के साथ होना चाहिए और वही आपके लिए काफी है। बस रब राजी हो गया, बाकी सारी दुनिया चाहे नाराज होती है तो हो जाए, मैंने अपना काम अपना मामला अपने रब के अहकामात के मुताबिक कर, नमाज का मामला हो, दीन का मामला हो, तबलीग का मामला हो, घरेलू मामला हो, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स जब फैसला करे तो कुरान और सुन्नत के रूह से करे, जब वो कोई बात देखे कुरान और सुन्नत के रूह से उस पर अमल करे। तो अगर इसी तरीके से वो चलेगा, हर लिहाज में कुरान और सुन्नत और अल्लाह ताला के अहकामात को डालेगा, तो वही कामयाब है। इस बात की एक झलक हमें मैदान हुनैन में भी नजर आती है, जब हजूर ने ये कहा कि ये 12,000 का लश्कर मेरे साथ खड़ा है, मैं तब भी नबी हूं, और अगर एक भी मेरा साथ ना खड़ा होता तब भी मैं नबी हूं। तो मेरी नबूवत का दारोमदार इस बात पर नहीं कि लोग मेरा साथ दें या ना दें। तो यहाँ पर दूसरी वही मुकम्मल हो जाती है, और इस बात पर इजमा है, और मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूँ। और इसके बाद की जो आयात हैं अब वो हैं जब वो कशमकश शुरू हो गई थी, जब वो मुदाहनत शुरू हो गई थी, जब वो मामलात शुरू हो गए थे, और फिर उनके लिए जो हदायत आई, और फिर उस दौर में वो लोग जिस पर अल्लाह का अजाब सबसे ज्यादा भड़का, जैसे वलीद बिन मुगीरा, और फिर ऐसे लोग जो बिल्कुल नंगे करके खड़े कर दिए गए, और उनका जिक्र आगे किरदार बिल्कुल वाज़ेह होगा। तो ये तमाम आयात बाद के दौर की हैं जो हम इंशाअल्लाह ताला अगली दफा पढ़ेंगे। अगर कोई बात मेरे मुंह से जज्बाती तौर पर निकल गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बाकी अल्लाह ताला हमें हक पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, और उस दौरान होने वाले जो मामलात हैं उन पर इस्तकामत के साथ मुजाहिरा करने की तौफीक अता फरमाए, और लोगों की बातों में आकर दीन को छोड़ देने से जिस पर अल्लाह ताला का अजाब सबसे ज्यादा भड़केगा, उससे अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, हम उससे बच कर रहे। और जो दायियत दीन को अल्लाह ताला ने यहाँ पर दिलजोई के लिए, आज के दौर के लोगों के लिए जिस तरह दिलजोई की गई, अल्लाह ताला ने पहले जिस तरह इल्फाजी लिहाज से, फिर अमली लिहाज से, और फिर अल्लाह ताला ने जिस तरह अपने अजर का मुजाहरा किया कि वो अजर जो कभी खत्म नहीं होगा, तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि मुझे अपना कितना ज्यादा से ज्यादा वक्त दीन पर देना चाहिए, दीन की इस्तकामत पर देना चाहिए, उसको नाफिज करने पर देना चाहिए, सिर्फ कौली अल्फाज पर काम नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत अपना करम फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम मिन आयाति ज़िक्रिल हकीम।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.